Good afternoon, everyone. So, मैम पहली चीज हम जो करेंगे, we will take you through the MyLoft जो अभी आपको email मिली है. For everyone's reference, this call is being recorded. So I hope we have approval of all the members. If anyone has anything, thank you. So, ma'am, the email that you have received, उसको आगे कैसे हमें process करना है? I'll show you that first. I'm going to start this session by sharing my screen. I hope my screen is being shared. So जो आपको email आई होगी, let me show you how the email you received an email something similar to this. Might be a different format might have received. But it says your name on the top, and it says now you can access SSC Online using MyLoft app. And there'll be option of set password. You have to click on the set password. It'll take you to a different page over here. Because I've already made a password on this app, so it is not asking me to set my password. Otherwise, it'll take you to the screen where you'll be required to set your password for the first time. Once you're done with that, you would it say select your institute. For now, ma'am, you don't have to search for your own university. You have to search for SCC Online as an institute. So when you write SCC Online, select over there and say continue. Your ID that has been on which you have received this particular email, उस पे आप ये वो email ID डालेंगे यहाँ पे, और पासवर्ड अपने भी अभी जो बनाया था अभी अपने थोड़े पहले पासवर्ड डाल के ये क्लिक ऑन साइन इन. और मैं इसको दिखा देता हूँ पूरा अच्छी तरह आपको. और जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, लेट मी स्किप दिस पार्ट, और इसको आप यहाँ जैसे स्क्रीन के ऊपर आएंगे आपको एक एक्सटेंशन, यहाँ पे एक मैसेज आएगा, ये दिखाएगा द MyLoft browser extension is required to access your library. Click add extension button to install the MyLoft browser. So ये एक बार करना पड़ेगा आप सबको, just to have that faster retrieval of information. इसको add extension करेंगे हम. It'll take you to the Chrome का अपना जो इनका store है, and you say add to Chrome, add extension, and automatically it'll bring you back to the page जहाँ पे हम लोग पहले थे. इस पेज पे आ गए. यहाँ आने के बाद नाम it's very simple. You come to this option, let me e-resources, and from e-resources you go to databases. We click on databases. So not only SCC but all the other softwares, all the other resource material when it comes to legal research websites, all those will be available over here. So अभी फिलहाल में SCC डाला हुआ है. So if I click on SCC Online, it will then open SCC Online web page. So this is the method to reach till SCC Online. First, you have to open your email, set your password, then you come over here, come to e-resources database, and then SCC Online. Now, once you're here on SCC Online page, ma'am, you need to click on login. Now, one thing which will make sure कि पूरा steps सही तरह follow हुए हैं. If you will find this IP login, that means everything is in place. You have followed the right process and nothing has been skipped. Sometimes it might happen, and it should not happen though, कि IP login आएगा ही नहीं आपके पास, user login आएगा. If that comes in, that means we have either skipped the process of MyLoft or something else is wrong. So IP login is a must. When you come to IP login, all you have to do is put your ID, no password is required. Now if I put my ID, now this is my ID, but considering the fact that this is already I've used it, so if I log in, it will log me in right now. But considering the fact that you will be logging with your ID for the first time, I'm just adding a number just for no reason, it will say login ID not registered. This is what you will get. So rather than typing it over here, you need to click on register here. You need to first register yourself, and let me show that to you. So you'd say, what's your login ID? I'll put in the same ID, chetan.gill@scconline.com. And I had just had one good enough, and I write my full name. So this is a one-time registration that all the members would have to do, even the students, and click on register and login. The next screen will ask me for when will I graduate.
So for the faculty members, they can simply skip it, or you can put ~999. Our students, depending on if they started last year, then they can put 2013 or 2023 or 2025, depending on the 3 or 5 year course. And let's say skip for now. And we are here in the system. Now, next time. Chetan, I would like to interrupt you here. I have a query. जो इसमें आपने ये बताया IP login, तो IP login is available only when will be available only when we will be in the campus. No, ma'am. Ideally, yes. That's the usual setup. That whenever you're in the campus, only then you get the IP access. But just to bring the same convenience at home, this MyLoft is given to you. So this MyLoft will actually become an authenticator, so that we know that someone from the university is reaching to our server. So which means that anywhere in the world, anywhere in the world, you'll be able to access SSC Online now, like you were used to access in the campus. Fine, sir. Fine. Thank you. So that's the whole purpose. Now, the next time if you log in, ma'am, with the same ID that I had written earlier, because I'm logged in once, I've registered once, it will not chetan.gill@ssconline.com. Oh, sorry. Chetan, if you want me to send no. It's okay, sir. Well, just a spelling mistake. My name was okay. So there we are. So next time के लिए आपको एक बार registration करने के बाद you're good to go. You can access from anywhere. Your question, that is the IP access. What Kapoor sir has done is just to answer that thing. That's why Kapoor sir was asking for everyone's ID, because once we have everyone's ID, irrespective where you are, you can access the same portals. Okay, fine. So if this is fine, then we'll go ahead with this. Now, before we get into this, let's understand what all the databases are we going to be accessing through SSC Online. So let me log it out. There's an option for you over here that says data coverage. I'm going to quickly take you through this data coverage. Click on Web Edition. मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब भी आपके पास टाइम होगा आपके पास, तो you can go through it अपने convenience के time से, but I will take you through anyways. Now it says we have a Supreme Court of India judgments from the inception till date, and then it says we have a true print, and we also have case notes. We'll come to this case note and true print in a moment, because this true print will come very often हर एक entry के अंदर. So we have Supreme Court of India, we have Federal Court judgment, Privy Council judgment before independent judgments, basically जो थी पहले from 1836 onwards in 1949. फिर सारी हाई कोर्ट्स का डेटा यहाँ पे है आपके पास, सारी हाई कोर्ट्स यहाँ रखी हुई हैं. सो इफ आई क्लिक ऑन प्लस साइन, विल शो यू ऑल द हाई कोर्ट्स. और इतना ही नहीं, क्योंकि we don't have a our forte is Supreme Court judgments. So what we've done is just to bring you the same level of information, same authentic level of information. हमने जो local publishers हैं, हमने उनका tie-up कर लिया है. Local publishers not like anyone, but like ILRs of various states. हमने उनका टाइप करा है, तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको ILR का डेटा मिलेगा. या in other cases, like आप यहाँ देख रहे हैं, Indian decisions by Allahabad, फिर AIR Allahabad की cross citations हैं. Cross citation मिल जाएंगे आपको, equal citation मिल जाएंगे आपको यहाँ पे. And this has been done for all the high courts. So, and if you see, this true print is still coming. So let me address this true print before we go ahead. True print क्या चीज़ है? When you're doing a search, we all know कि internet printout जो हैं, वो आप कहते हैं उन पर rely करना, उनको submit करना, उनको before the court is, it's always a dicey situation. वो थोड़ा acceptable नहीं, accept नहीं करते हैं, admit नहीं करते हैं courts के अंदर. So true print का मतलब क्या है कि when you're doing searches on this platform, और अगर आप चाहते हैं इसका printout लेना, तो printout जो निकलेगा वो बिल्कुल ऐसे निकलेगा जैसे कि बुक्स में जैसे प्रिंट हुआ होता है, तो उसकी फोटोकॉपी निकलेगी आपके पास. Okay, fine. So in simple words, without going to the library, you have the entire library with you.
So that's the true print, and that's what we're doing. True print हमने सिर्फ SCC का तो है ही, but बाकी ILRs वगैरह का भी रखा हुआ है, so that अगर आपके पास कहते हैं जाने का टाइम नहीं है, जैसे कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, we cannot visit a university or library for that matter, any public library. उन केसेस के अंदर आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास डेटा एक्सेसिबिलिटी नहीं है. आपके पास डेटा एक्सेसिबिलिटी भी है, आपके पास एक्चुअली सबके PDF फाइल्स पड़ी हुई हैं सारी जजमेंट्स की आपके पास, तो ऑथेंटिकेशन आ जाएगी. और इसका मतलब ये भी है कि आपकी लाइब्रेरी में आपकी शायद फिजिकल लाइब्रेरी में शायद लेट्स से 20 जर्नल्स पड़े हों, बट यहाँ पे आने के बाद करीबन वो जर्नल्स करीबन 300-400 करीब हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि सारे जर्नल्स का आपको ई बुक्स मिल जाएंगी यहाँ पे आपके पास. देन इसके अलावा हिस्टोरिकल कोर्ट्स हैं जो कि बिफोर इंडिपेंडेंट जजमेंट्स थी, जैसे कि अवध, लाहौर, लोअर बर्मा, अपर बर्मा, जो वो कोर्ट्स थी पहले वाली प्रोविंशियल लेवल की, वो जजमेंट यहाँ पे रखी हुई है. काफी सारे ट्रिब्यूनल्स की जजमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि TDSAT, एप्टल, विपो, ISAT, लेबर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, वो सब जजमेंट्स हैं यहाँ पे. लिस्ट पूरी यहाँ लिखी हुई है आपके लिए. एंड देन ये सब जजमेंट्स की बात हो गई. उसके बाद स्टैट्यूटरी लॉ क्या है यहाँ पर? सारे सेंट्रल एक्ट्स हैं, एज ऑन डेट अमेंडेड, स्टेट एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शन, दोनों सेंट्रल नोटिफिकेशन भी हैं और स्टेट नोटिफिकेशन भी है आपके लिए यहाँ पे. बिल्स इन पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो आपके आते रहते हैं एज अ टाइम पास बाय. देन वी हैव योर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, बेसिकली जो डेटा और जो इंफॉर्मेशन प्राइमरी लॉ जजमेंट्स को या एक्ट्स को सपोर्ट करती है, वो सब दी हुई है यहाँ पे. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स जो कि बैकबोन मानी जाती है या बेस मानी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो यहाँ रखी गई हैं. फिर रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड कमेटीज ऑफ, बहुत सारी कमीशन रिपोर्ट्स यहाँ पे रखी गई हैं, आप लिख सकते हैं लिस्ट. अब बताने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अगर आज लाइसेंस लेते हैं आप, एंड आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल, अगर आप आज लाइसेंस लेते हैं और इसमें लेट्स सपोज करीबन 25 कमीशन हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जब नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल आएगा आपका, उसके बीच में अगर 25 से 35 से 40 भी हो जाएंगी, तो वो आपके अकाउंट में ऐड होती रहेंगी. ऐसा नहीं होगा कि आपने जब आपने लिया तो सिर्फ 25 ही तो 25 रहेगी, नहीं, दिस इज कीप ऑन एडिंग. मैं क्यों कह रहा हूँ, लास्ट ईयर करीबन इस टाइम से थोड़ा पहले यहाँ से 4 रिपोर्ट्स हुआ करती थी, और 4 रिपोर्ट्स एक साल के अंदर आई थिंक काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं. So this will keep on adding for you, and this also includes your Law Commission of India reports. इसके अलावा कमिंग बैक तो आपकी लाइब्रेरी वाली बात जो कर रहा था मैं, कि आपके आर्टिकल्स भी रखे गए हैं यहाँ पे, इसमें कि SCC के आर्टिकल्स हैं, SCC का अपना ही जो प्रैक्टिकल लॉयर की जो मैगजीन हमारी वो रखी गई हैं. फिर बाकी जो इंस्टीट्यूट्स की जो जर्नल्स हैं वो रखे गए हैं, इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं उनकी भी यहाँ पे रखी गई हैं, सिंगापुर वगैरह के, ढाका के, सो रखे गए. ट्रीटीज, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ये सारा सिर्फ इंडियन डेटाबेस है. अभी तो हम सिर्फ इंडियन डेटाबेस की बात कर रहे हैं. इसके बाद आपका फॉरेन मटेरियल आता है, जिसमें कि आपके करीबन 24 अदर कंट्रीज का डेटा है, जिसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूके हमारा इनहेरिट किया है, उनकी 1865 से लेके अभी तक विथ ट्रू प्रिंट, उनका एग्जैक्ट फोटोकॉपी उनकी जजमेंट्स की यहाँ रखी गई है. एंड दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनीवन लाइक एनी रैंडम पब्लिशर, but the official reporter of UK judgments, that is ICLR, Incorporated Council of Law Reporting. So we have an official tie-up with them. So उनका यहाँ देखा है, including the red index is made available to you. फिर इसके अलावा बाकी जो neighboring countries हैं, SAARC countries हैं, उनका डेटा US, UK, West Africa, South Africa, ये सारी यहाँ पे देखें, including सिंगापुर का पूरा end-to-end data, again from LawNet, जो उनका अपना उनकी official body है. इसके अलावा ये तो फॉरेन हो गई है. आई कैन स्टिल गो ऑन एंड ऑन. देयर इज इंटरनेशनल मटेरियल, इंटरनेशनल कोर्ट्स जो कि कहते हैं किसी कंट्री के स्पेसिफिक नहीं होती हैं, बट जो जैसे कि ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और देखिए CCJ हो गया या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो गया. ये सारी जो कोर्ट हैं जो कि इंटरनेशनल मैटर्स को संभालती हैं, या दो कंट्रीज के डिस्प्यूट को संभालती हैं, या समथिंग जो कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, उनके लिए जो केसेस होते हैं, वो सारे जो यहाँ पे होते हैं, वो सारे भी जजमेंट यहाँ पे दी गई. So let's say huge. I will stop over here and take you back to the login screen. अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना कुछ तो है, बट इतना कुछ का फायदा तभी होगा अगर हम
इसको सर्च ढंग से कर पाए। अब बात कर रहे हैं हम कि सर्च करना कैसे कर सकते हैं इन सब डेटाबेस को, क्या ये बहुत डिफिकल्ट है, क्या इसके सिर्फ एक दो तरीके हैं या कैसे तरीके हैं, सो वी विल टॉक अबाउट दैट नाउ। अब देखिए जब हम लॉगिन करते हैं, ये कहता है एससीसी ऑनलाइन डैशबोर्ड, इस स्क्रीन को हम डैशबोर्ड का नाम देते हैं, तो आई विल बी रेफरिंग इट टू डैशबोर्ड थ्रू आउट द सेशन। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लू कलर के टाइल्स हैं जो कि कैरी हैं रिसर्च प्लस, फिर है माय लाइब्रेरी जो कि रेड कलर की जो टाइल्स है, और तीसरा है लिंक्स। तो लिंक्स के लिए हम थोड़ा रुक के बात करते हैं हम पहले बात करते हैं इन दो चीजों के बारे में। रिसर्च प्लस वो टाइल्स हैं जहाँ पे कि आपको अगर सर्च करना है, आपके कुछ है आपके पास सर्च करने के लिए, कि पार्टी का नाम है तो आप यहाँ पे आ जाइए, पार्टी की सर्च करेगी। अगर आपके कोई साइटेशन है, देखिए थोड़े पहले कपूरथला में साइटेशन दे रहे थे किसी पर्टिकुलर जजमेंट की, तो आई कैन कम ओवर है, आई कैन सर्च फॉर द साइटेशन। इतना ही नहीं, साइटेशन यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ एससीसी साइटेशन, आप एआईआर सर्च कर लीजिए, आप क्रिमिनल लॉ जर्नल सर्च कर लीजिए, मार्शल लॉ जर्नल सर्च कर लीजिए, इलाहाबाद लॉ टाइम सर्च कर लीजिए, जो भी है आपके पास। इवन अगर हमारे पास उनके साथ टाई अप नहीं है, हमने साइटेशन दे रखी है सो दैट आपको जजमेंट मिल जाए। फिर उसके अलावा अगर किसी जजमेंट चाहिए, किसी सेक्शन में वो जजमेंट चाहिए किसी एक्ट के, तो वो मिल सकती है। पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है तो यहाँ सर्च हो सकता है। तो ये आपका रिसर्च में आपको कुछ टाइप करके सर्च करना पड़ेगा। उसके ऑपोजिट जो माय लाइब्रेरी है, इसका अलग किस्म चलती है। ये कहता है ब्राउज। यहाँ कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, वो इंफॉर्मेशन देखनी शुरू हो जाएगी आपको। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सो दैट वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन द टू। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसका ब्राउज एक्ट्स एंड रूल्स का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए कि ये कहता है सेंट्रल एक्ट्स, स्टेट एक्ट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ आ रहा है। मैं सेंट्रल एक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ क्लिक करा, मैंने कुछ नहीं करा। यहाँ पे एक्ट्स आ गए। अब मैं कोई भी एक्ट चाहता हूँ देखना, देखिए लेट्स से मैं देखता हूँ एविडेंस एक्ट उठा लेता हूँ। मैंने एविडेंस पे क्लिक किया, वो कहता है अमेंडिंग एक्ट देखना है, प्रिंसिपल एक्ट देखना है। मैंने प्रिंसिपल एक्ट देखना, मैंने इस पे क्लिक किया, वो आराम से यहाँ पे इस वाले स्क्रीन पे, साइड वाले स्क्रीन पे आ जाएगा। और आप स्क्रॉल करेंगे तो पूरा बेयर एक्ट आपके सामने आ गया। देखिए अब इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको। मैं ये देखिए इसमें कह रहा है एप्लीकेबिलिटी, जो कि एक सेक्शन है पर्टिकुलर एविडेंस एक्ट के अंदर। तो कह रहा है एप्लीकेबिलिटी के ऊपर ये कुछ ब्रीफ, ये कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। It says evidence has no application to inquiries conducted by tribunals and other things. उसमें नीचे लिखा हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टीआर वर्मा। फिर दूसरे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें साइटेशन लिखी हुई है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस रतन सिंह। फिर तीसरी कुछ और है, चौथी कुछ और है, पांचवी कुछ और है, छठी कुछ और है। छठी वाली सेम ही है, ऊपर वाली है। अब ये क्या चीज हो रही है, और ये चीजें चलती जाएंगी। देखिए आप, ये नेशनल जस्टिस पे एक जजमेंट है, ये क्या हो रखा है यहाँ पे इन द बेयर एक्ट के बीच में, और ये हमने पूरे सारे सेंट्रल एक्ट के अंदर कर दिया हमने काम। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, एप्लीकेबिलिटी के ऊपर करीबन 5 जजमेंट हैं जो कि हमारे एडिटोरियल डिपार्टमेंट जो कि हेड नोट्स वगैरह बनाता है, उनके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप सर्च करना चाहेंगे एविडेंस एक्ट एप्लीकेबिलिटी सेक्शन के ऊपर, तो आपको करीबन 100, 200, 1000 जजमेंट मिलेंगी। बट पता लगाना कि कौन सी जजमेंट ऐसी है जो कि काम की है आपकी, वो यहाँ से पता लग जाता है। और देखिए आप एक चीज नोटिस करेंगे, वी आर नॉट सेइंग कि हर एक चीज एससीसी ऑनलाइन की ही होगी। जो भी साइटेशन है, चाहे वो एआईआर की हो चाहे एससीसी की हो, वी गिविंग यू ऑल ऑफ दैट। सो देयर इज नो बायस एज सच, यू नो दैट कि आपको सिर्फ एससीसी की ही मिलेंगी। और ये चीज देखिए, अगर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, सब में आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ में आ रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस के अंदर आ गया, सब में आ रहा है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज, नाउ इफ यू सी दिस evaluation of evidence, men may lie but circumstances do not, is a cardinal principle of evaluation of evidence. अगर आपको लगता है ये जजमेंट आपके काम की है इतना पढ़ने के बाद, सिंपली इस पे क्लिक कर दिए साइटेशन के ऊपर, और ये पूरी जजमेंट आपकी एक अलग टैब में खुल जाएगी। और इतना ही नहीं, अगर आप जजमेंट भी पढ़ रहे हैं आप, देखिए इसमें लिखा होता है पीनल कोड 1860 सेक्शन 302 304। अगर आपको ये पढ़ते हुए लगता है कि 304 पढ़ना है आपको, कि 304 में लैंग्वेज क्या थी, तो आप इस पे क्लिक करेंगे
तो सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी खुल जाएगा यहाँ पे। और अगर आप आईपीसी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो पूरा पूरा पीनल कोड का सेक्शन एक्ट खुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप बेयर एक्ट से जजमेंट में जा सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर, यू सी द जजमेंट। और जजमेंट में से जब आप पढ़ रहे हैं कुछ भी, एंड इफ यू वांट टू सी कि मेरा क्या सेक्शन है, मेरा क्या जजमेंट है जिसमें मैं चाहता हूँ सर्च चाहती हूँ करना, आप उस पर क्लिक करके आप सेक्शन भी पढ़ सकते हैं। तो इस दोनों से जा सकता है ये। तो ये हमारा कर्क है। अब मैं वापस चलता हूँ। तो ये ब्राउज का पार्ट था। ये सारी चीजें चलती हैं, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, बट अभी आई थिंक फॉर नाउ आई विल स्टॉप ओवर हियर एंड आई विल डू अ स्मॉल कंपैरिजन इन द सर्च वाले में। इसमें डिफरेंस क्या है। अब मैं वर्ड सर्च में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको ब्राउज नहीं करने देना, यहाँ पे टाइप करने को कह रहा है, कुछ टाइप करिए। आप टाइप कर सकते हैं। आप अगर आपको जजमेंट चाहिए किसी चीज के ऊपर भी, वो क्या एक वर्ड हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, या 2-3 वर्ड्स भी हो सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ फिलहाल। लेट्स टेक, आई वांट टू सी जजमेंट्स ऑन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मैंने ये लिखा। अब आई कैन डू अ स्टार्ट सर्च। आप चाहे स्टार्ट सर्च कर सकते हैं, बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। जब भी कभी अगर सिर्फ एक सिंपल एक वर्ड होता है यहाँ पे, सिर्फ लिटिगेशन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट बिकॉज यहाँ 3 वर्ड है, पब्लिक इंटरेस्ट और लिटिगेशन, तो कभी भी 2 वर्ड या 3 वर्ड जो कि एज अ लीगल वर्ड है या फ्रेज है, लीगल फ्रेज लाइक डाउरी डेथ, मोटर एक्सीडेंट, लोकस स्टैंडाई, रेस जुडिकेटा, ये सारे लीगल वर्ड्स हैं जो कि एक या 2 वर्ड से इकट्ठे बनते हैं। मेरा सजेशन होगा कि जब भी इन जैसे वर्ड सर्च करें तो आप डबल कोट्स डाल दीजिए यहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि ये जो है सर्च, ये आपको इकट्ठा एज अ वर्ड सर्च करेगी। और ये सर्च करा मैंने भी, तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे आपको पहले ब्राउज करना पड़ रहा था, सिर्फ आप सर्च कर रहे थे और फिर आपके पास ऑप्शन आ रही थी, कहते हैं देखने की। यहाँ पे क्या है, रिसर्च में आपको पहले टाइप करना पड़ेगा और फिर आपके पास ब्राउज की ऑप्शन आती है। आप देखिए इस ब्राउज में क्या क्या मिलेगा आपको। जो हमने डेटा कवरेज की बात की थी हमने कि वी हैव इंटरनेशनल कोर्ट्स, वी हैव प्रिवी काउंसिल, वी हैव आर्टिकल्स, वी हैव सर्कुलर्स, एक्ट्स एंड एवरीथिंग, वो सब यहाँ पे आ गया है। डाइजेस्ट नोट्स आपके हेड नोट्स हैं, हम इसमें रुक के बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो रुक के बात करते हैं इस बारे में। देखिए जजमेंट्स आ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, फॉरेन कोर्ट्स। अब देखिए अगर मैं प्लस साइन करता हूँ हाई कोर्ट पे, तो हाई कोर्ट वाइज जजमेंट खुल जाएगी सारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे करीबन 1000 जजमेंट्स हैं। आंध्रा में 89 है, बॉम्बे में करीबन 2100 हैं। प्लस करता हूँ मैं फॉरेन केसेस। अब जब देख रहे हैं कि इंडियन कोर्ट्स के अंदर करीबन 1600 जजमेंट्स हैं, 1600 जजमेंट हाई कोर्ट के अंदर, 900 करीब, इतने अंदर करीबन 2600 करीब जजमेंट्स हैं यहाँ पे, 26,000 जजमेंट है यहाँ पे, जो कि सिर्फ इंडिया में है। बट आप देख रहे हैं फॉरेन केसेस के अंदर पूरी इतनी सारी कंट्रीज मिला के सिर्फ 280 करीब मिल रहे हैं आपको। इसका मतलब सिंपल है कि इंडिया जो है, इंडिया में बहुत ज्यादा पीआईएल एज अ टॉपिक बहुत डेवलप्ड हो रखा है, जो फॉरेन कंट्रीज में नहीं है। बट अगर आप चाहते भी हैं देखना कि किसी कंट्री में क्या बात हुई है, तो आप दे सकते हैं। आप देखिए यूके भी आ रहा है, यूके में 11 जजमेंट्स है। ऐसे ही इंटरनेशनल कोर्ट्स आ गई। ट्रिब्यूनल्स, क्या क्या ट्रिब्यूनल्स में बात हुई है, वो सब ट्रिब्यूनल से आ जाएंगे सारे आपके यहाँ पे। अब इसका पर्पस क्या है, देखिए व्हाई एम आई शोइंग दिस टू यू। अगर आप कहते हैं मुझे सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट देखनी है या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखना है मेरे को जजमेंट्स, तो ऑप्शन बड़ी सिंपल है। देखिए ओनली ऑप्शन है, आप जो भी चाहिए आपको, सिर्फ आपको वो चाहिए तो आप उस पर आगे क्लिक कर दिए ओनली पे। देखिए यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ओनली, इट विल जस्ट शो यू ओनली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, दैट्स इट। तो आप सर्च सब में करेंगे, बट आपके पास ये ऑप्शन रहती है कि आप क्या चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं चाहिए उसको डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैम, लेट मी ज़ूम इन अगेन, आपके एक्ट्स आ गए हैं, सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, बिल्स इन पार्लियामेंट आ गए हैं, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए थे या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुए थे पीआईएल के, वो आ गए सारे। रूल्स रेगुलेशंस आ गई हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, आर्टिकल्स भी आ गए। नाउ थिंकिंग फ्रॉम द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, जब भी हम रिसर्च करते हैं, अगर हम फैकल्टी की बात करें
The faculty cannot say that I will only read one judgment and then I'll deliver my lecture. It's not possible. And moreover, it is like 1:40. The faculty members have to be, have some extra information or some more information so that they can answer the X number of questions. Like what we are doing right now. अगर मुझे पता नहीं मैं सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बता रहा हूँ आपके आगे, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, and if I'm not prepared with that, it will be a pure disaster. But इससे क्या होता है कि इससे पता लग जाएगा आपको कि क्या स्टेटस है पीआईएल का अभी, इंट्रोडक्शन क्या बिल्स सबमिट हो रखे हैं कोर्ट के अंदर, क्या बात हो रही है पीएल के ऊपर, कुछ चेंजेस आ रहे नहीं आ रहे, कोई पॉलिसी आई नहीं, सब पता लग जाएगा. एंड फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जब रिसर्च कर रहे हैं, व्हेन दे डूइंग द रिसर्च, उनको पता लग जाएगा कि दैट व्हाट वी आर लुकिंग एट इज नॉट ओनली द जजमेंट बट द पास्ट, पहले क्या था पीआईएल, अब द करंट दैट इज जजमेंट्स क्या है भी, क्या द एक्ट्स हैं, और फ्यूचर ऑफ पीआईएल दैट इज कितने कोई बिल्स आ गया है, कोई नोटिफिकेशन आई है भी जिससे पीआईएल का जो will evolve into something else. So these three eras anyone can go through by going through this first column. So this is a complete data coverage with just one word search that you've done. तो ये डिफरेंस है ब्राउज के अंदर. ब्राउज आपको एक रिस्पेक्टिव स्टेट का चीज देगा, आई टैग देगा, इसमें आपको सब कुछ इकट्ठे सर्च हो जाता है, बट इसे सर्च करने की जरूरत पड़ती है बिफोर यू गेट इनटू द ब्राउज मोड. अब आप जो भी यहाँ सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है मैम. इफ यू क्लिक ऑन दिस, वो यहाँ लास्ट में थर्ड कॉलम में डिस्प्ले हो जाता है. आप ये पूरी जजमेंट आ गई आपके सामने, पार्टी नेम दे रखे हैं और जजमेंट यहाँ शुरू हो गई है, और ये टॉप पे दिख रहा है आपको ये बोल्ड में, ये जजमेंट का पार्ट नहीं है. दिस इज द हेड नोट जो हम लोग बनाते हैं. ये हेड नोट अब देखिए कि इसका फायदा क्या है. I'll come to we call it head note, we call it digest note, law points, अलग नाम से लोग जानते हैं इसको. मुझे नहीं पता है केस किस बारे में है. It talks about Center for Public Interest Litigation versus Union of India. ये दोनों ऐसे पार्टी हैं जो कि are very very vast in their activities. Public interest litigation can be of anything. Union of India case can be with anyone on any topic. अब देखिए हेड नोट क्या कह रहा है. Constitution of India Article 14 2G scam case. Supreme Court directing quashment of 122 licenses within 4 months after getting fresh auction-wide judgment. This is this. Compliance with judgment of this. Now I know this is something about telecom or the internet 2G scam case, because that's what it says. Or if I read something more, authorities warn that if they fail to complete auction by this, suo motu contempt proceeding under this article would be initiated. Further, the auction proceeds should not be impeded by any judicial intervention of any court. So without even reading the full judgment, I would know that what this case is about. And not only this, let's move to the next one. This is also the same case, something similar to 2G scam. Move to the next one. You get something, this is talking about deaths of farmers in Tamil Nadu. Obligation of state to take, okay, before I mispronounce it, I'll try it. Ameliorative measure to prevent. Held, petitioner rightly urged that High Court has failed to appreciate real grievance. So this is something about farmers' death and something related to the right to information. If you talk about it, I think it's famines and other things that have been probably of the drought or something else that has been taken care of. So this is the purpose of head notes. It gives you the crux of the entire judgment into small and not only this, it tells you that in which paragraph this has been decided, this has been discussed. So this is the basic of this particular screen. Couple of things that you can do. You can save it. There are options over here. You can save this. You can email it. You can take a printout. And now talking about printout, we spoke about that there's a true print option available, right? So let's see this. Let me zoom in. It says a print में है, एक true print है, एक non-true print है, और एक है non-true print with highlights. Highlights क्या? जो वर्ड हमने सर्च किया public interest litigation, जब print out लूँगा तो वो highlight होके आएंगे words. तो I think कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. अब दो चीज़ देखिए सर. ये true print जो कि बताया आपको कि exact photocopy of the judgment जैसे वो publish हुई थी वो आ जाएगी आपके पास. और non-true print basically जैसे ही judgment दिख रही है आपको इंटरनेट पे भी उसका प्रिंट आउट आ जाएगा. तो मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको.
Let me first go with the non-true print. देखिए जैसे जजमेंट थी वहाँ पे, उसका यहाँ पे जो इंटरनेट पे जजमेंट थी, जो हमारी वेबसाइट पे थी, उसका प्रिंट आउट है ये, उसका फॉर्मेट है. अब नाउ साइड बाय साइड लेट मी टेक अ ट्रू प्रिंट. ये पूछेगा आपसे कि आपको कितने पेज जजमेंट चाहिए, तो 3 पेज, 3 पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स टेक अ प्रिंट. And now you see this SEC Online True Print. Or, ma'am, you would agree with me that this is the exact, photocopy of the journal as it was there. And there you have it. Second page and the third page, the last line. That means this judgment ends over here. And the best part of this printout is that it's non-editable. So the reason why it is accepted in all the courts throughout India is because if you take a printout of True Print, you cannot even edit a single word on this page. So it helps the courts, it helps the faculty members, rather than going back to the law reports and checking word to word कि क्या ये सब कुछ सही है, exactly words वही है या नहीं है. That effort of matching one each and every word is exempted, because this gives you the guarantee that this is a official true printout and nothing has been changed over here. Fine. So saves a lot of time. Now let me get back to this. There are other options which we will come, we'll talk about this in some time. Let me go back to the dashboards. I click on this icon and you come to the word search again. Now that was one word search. अब अगर आपके पास कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि आपको सर्च करना है which has couple of more things in your mind, like a sentence or something. Suggestion ये रहेगा आपको कि आप पूरा sentence ना लिखें. जैसे कल I was taking a session with one of the members who was not even from a law background, but because he was running a factory, he said, I want to buy the software because I want to know what are the company's laws and everything, and also I want to know about the day-to-day things, like family law में क्या provisions हैं, फिर what rights do I have as a citizen, then other small things like what is my responsibility, what is the taxation cases and all this stuff. So he asked me this question. He said, I'm looking for cases. I want to see that divorce cases के अंदर divorce cases किस चीज पे हो सकता है, and जहाँ पे mutual consent की जरूरत ना हो. So he gave me a simple question. So he said, and this is what he has done research automatically beforehand coming to me. He said, I know that it can be annulled if it's about the person is important, or if the person is having a is living with someone else. These are two things where mutual consent would not be required. But then he said, I want to know that what about the custody of child? If there's some custody of child is involved, I want to see those cases. Now, I can write, I'm looking for divorce cases where custody of child was discussed, all the stuff, not required. Just write 2 words, divorce and the word child custody. Now, that's good enough for us. I'm not putting double quote on divorce because for a simple reason, that's a single word. Start search. It will give you all the searches where these 2 words were being discussed in one judgment. So there we have. So this way, you'll get all the judgments when you can look for it. Now, it can be child custody or can be custody of child as well. अगर कभी ऐसा हो जाए आपके पास, तो you can also modify that search. Going back, you can modify the search. I'm keeping it very simple right now, and probably we'll come back to this with more advanced, sections or searches. Sajid sir, I will move to the next one right now, and then we'll come back to the word search again, so that we can cover more grounds and then come back to, and because ma'am and sir, to all the members who are joining us today, this is a search
which 90% of users prefer over any other searches. Yes. And because of which I can spend, I think, another half an hour, 40 minutes only on this. But what will happen is that I would not be able to get time to cover the rest of the things. So what I'll take, I think we have got the gist of how it works. I'll move to the next searches and then we'll come back to word search and spend more time. चेतन, हाँ चेतन, ऐसा कीजिए कि आप बाकी सारी चीजें पूरा कीजिए, वर्ड सर्च जब आने लगेगा तो मुझे क्यू कीजिएगा, आई विल एक्चुअली टेक द वर्ड सर्च सेक्शन, ठीक है? ठीक है, so we've done the basics, sir. We'll do the advanced searches once we're back on that. ठीक, right? ठीक, okay. So we're moving to the next one. We come to this one. That is fine. Case law by section. No, I think we leave this. We'll come to this. Words and phrases. Now, words and phrases is like a legal dictionary. You must be wondering कि हम कर क्या रहे हैं. हम लोग बड़ा सिंपल चीज कर रहे हैं. हम आपकी जो लाइब्रेरी है, जो कि फिजिकल लाइब्रेरी थी आपकी, उसको वो सबको वर्चुअल कर रहे हैं. Judgments are virtual now on the cloud. Your printouts, your law reports printouts are on the cloud by TruePrints. Now, the third thing that we're doing is we are bringing your dictionaries, your legal dictionary, law dictionaries also on the cloud. And that is what words and phrases is. Words and phrases जो है आपकी legal dictionary है. आप अगर यहाँ पे आते हैं, आप कोई word डालते हैं यहाँ पे. Let's write res judicator. And start search. अब देखिए, ये कह रहा है कि res judicator जो word है, इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है वो किसी केस से आ रही है, और वो किस केस से आ रही है? रामजी गुप्ता से गोपी कृष्ण अग्रवाल से. जो सेकंड डेफिनेशन है वो आई थिंक किसी केस से आ रही है, रामकृष्ण नायडू वर्सेस कृष्णा समी नायडू, जो कि मद्रास डिविजनल बेंच का जजमेंट है. और थर्ड डेफिनेशन है वो किसी यूके के जजमेंट, क्वींस बेंच जजमेंट से आ रही है, कोल वर्सेस लैंडफोर्ड. बट साथ में लिखा हुआ वॉट. अब ये वॉट क्या है? वॉट इज अ वॉट इन डिक्शनरी ऑफ लॉ. सो हालांकि ये जजमेंट जो ये डेफिनेशन जो है जजमेंट में दी गई थी, बट ये जजमेंट में दी गई थी ये वॉट डिक्शनरी से उठाई गई थी. दिस इज लीगल डिक्शनरी मीनिंग एज वेल. सो इस तरह से यू कैन सर्च विद एनी single word and you'll get the judgments, you get the definition of it. Not only that, if you see this, the word murder, now this definition, it says it's coming from section 300 of penal code. So not only the judgments, basically the Bail Acts, wherein the Bail Acts has defined a particular word, the judgment which has defined the word, or the legal dictionary, that is what that has been defined, will give you all that definition in one place. I'll go to the next, ma'am. I go back to this and I go to find by topic. Find by topic में क्या है? जो हम word search में कर रहे थे, something similar it will be done in find by topic. Difference क्या है? Search is a random search. You can search for any word, legal word, non-legal word, a sentence. You name it, you can search for it. Find by topic, आपका again, I think I'll take you back to your library. हमारी लाइब्रेरी में एक डाइजेस्ट होती है, जो एले डाइजेस्ट होती है कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर एक टॉपिक पे कितनी जजमेंट्स आई हैं और टॉपिक वाइज कुछ जजमेंट्स सेग्रीगेट हो रखी होती हैं बुक के अंदर, जिसे हम डाइजेस्ट कहते हैं. सो एससीसी ऑनलाइन की अपनी आती है, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट एले डाइजेस्ट, एससीवाईडी फॉर शॉर्ट. अब जो एससीवाईडी में क्या होता है कि अगर आपको देखना है कि 2020 के अंदर एक टॉपिक के ऊपर, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर क्या क्या जजमेंट्स आई हैं, तो ये जस्ट सिंपली गो टू दैट पेज, यू गेट ऑल द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जजमेंट्स, हेड नोट्स in 3-4 pages depending on कितने जजमेंट्स आई हैं. You read that head note और उसकी citation लिखी होती है. You come back, you open your volumes and start reading the full judgment. ये हम लोग पहले करते हैं, I'm sure आप लोगों ने यही पहले किया होगा कि going through the books and then getting to the volumes. Same चीज यहाँ कर दी है. If you see that this is a topic tree of SCC, अब आप किसी भी क्लिक करते हैं, अगर आप let's take administrative law, so it will tell you that under administrative law we have so many topics: judicial review, legitimate expectation,
promissory estoppel, ultra vires, and others. आप जिस पे भी क्लिक करना चाहेंगे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ नेशनल जस्टिस कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो आपको एक पता लग गया टॉपिक ट्री क्या है कि ये टॉपिक प्रिंसिपल टॉपिक है और सब टॉपिक जो है वो नेशनल जस्टिस है बट प्रिंसिपल टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। इतना ही नहीं, अगर लेट्स सपोज आप चाहते हो कुछ सर्च करना, जैसे कि लेट्स टेक चाइल्ड कस्टडी। अब देखिए चाइल्ड कस्टडी दो टॉपिक्स के अंदर आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ और फैमिली लॉ। अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि हम लोग ने दो में क्यों डाला, कि एक्चुअली जब मैंने कहा कि ये टॉपिक ट्री एससीसी की है, आई थिंक आई विल कॉन्ट्रडिक्ट माय स्टेटमेंट। दिस इज नॉट ओनली फॉर एससीसी, वी हैव amalgamated all the other digests, AIR digest बाकियों का। तो कई डाइजेस्ट के अंदर टॉपिक ट्री में हल्का जैसा डिफरेंस है। कई जगह पे जो चाइल्ड कस्टडी है वो फैमिली एंड पर्सनल लॉ के अंदर आता है और किसी डाइजेस्ट के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज के अंदर आता है। तो हमने दोनों दे दिए आपको। इसका फायदा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्टूडेंट्स would understand how the topic has evolved and ये टॉपिक किस मेन टॉपिक के अंदर आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इट डजंट नॉट मैटर कि आप इस पे क्लिक करें या आप इस पे क्लिक करें, आप जिस पे क्लिक करेंगे रिजल्ट दोनों के सेम ही आएंगे। You'll have the same results. But this is only for the faculties and for the students, faculties to teach and the students to understand that how a topic, which main topic does this subtopic belongs to. अब ये करने के बाद मैंने सिलेक्ट किया चाइल्ड कस्टडी। देखिए यहाँ पे आई नीचे आते मेरा, नीचे ऑप्शंस है सर्च एवरीवेयर, सर्च इन डाइजेस्ट नोट्स एंड सर्च इन हेडिंग्स। अब सर्च एवरीवेयर का मतलब क्या है? जैसे हमने सर्च किया था वर्ड सर्च के अंदर, इट विल सर्च इन एवरी प्लेस। एक्ट्स में सर्च करेगा, बिल्स में सर्च करेगा, आर्टिकल सर्च करेगा, जज में सब कुछ सर्च करेगा। और जो सर्च इन डाइजेस्ट नोट्स है इसमें क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हेड नोट्स देगा। So this should be used when you have less time and you want to get the important information. So let me take this one. I've taken this one and go. अब देखिए जो हम बात करें हेड नोट्स की, सुप्रीम कोर्ट 120 जजमेंट्स आए, 120 हेड नोट्स आए हैं और ये सारे अलग अलग केसेस हैं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, फैमिली लॉ, पर्सनल लॉ, शिल्पा अग्रवाल, अत्तर हुसैन, रुचि माजो, विक्रम वीर एंड अदर्स। Now what is happening over here is, इस केस के अंदर शायद बहुत चीजें डिस्कस हुई होंगी बट जो चाइल्ड कस्टडी का एक पॉइंट है सिर्फ वही एक पॉइंट उठा के यहाँ पे रखा गया है। और देखिए ये कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ चाइल्ड कस्टडी, रिटर्न ऑफ चाइल्ड बैक टू द कंट्री टू व्हिच he she belongs, action given to Shilpa Agarwal case, require mother to submit to jurisdiction of appropriate court in UK. So you get to see only the brief of judgment, and they say that after reading it, it says father to bear his own travel expenses but at liberty to stay in matrimonial house, father in personal laws, family and personal laws, matrimonial discord and other things. And it says this entire thing has been discussed in para number 13 of the case. Now which case? That is Shilpa Agarwal versus Aviral Mittal. हमने एक बात स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि we give you equivalent citations. अब देखिए इसमें देखिए एससीसी साइटेशन दी हुई है, एससीसी सिविल, एससीसी ऑनलाइन, ईसीआरएन, एआईसी, एआईआर। सो आप कोई भी साइटेशन यूज करते हैं अगर आप सर्च करने के लिए तब भी आपको जजमेंट मिल जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये हेड नोट है, सिर्फ जजमेंट पूरी नहीं है। अगर आपको लगता है आप काम का नहीं है जजमेंट आपके, इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट समवन जिसको कहते हैं ओवरसीज शादी हो रखी है एंड इट्स अ इंटरनेशनल मैटर, we'll not get into that. Let's leave this judgment, let's move to the next one and you read this one. It's a custody of minor child and guardianship, independence of the issues. Now this is of minor child की बात हो रही है, you read about it and you say okay, this is something relevant to me. You make a note of these paragraphs and then simply click on the citation. Let me close all the extra tabs first. It's easier. I click on this and this will open the full judgment over here. I can read the full judgment.
So what is happening as a researcher, as anyone, faculty or the students, we are just reading a point of law, which is of my interest. After reading a point of law, I can decide that do I want to see the judgment or I move to the next one. So if you see, in less than 3 minutes, I have gone through 3 judgments. I'm only on the 3rd judgment. And I can figure it out the judgment is relevant to me or not. I can move to the 4th one as well. So this saves your time. You read about it, factors to consider, anatomy and rights of parents, and then simply click on this, the full judgment. So this is why we say, it's better to go for digest notes. But let me perform the same search again and get you the search everywhere option. Search everywhere and now see this. We got those 120 head notes, but we also got high courts, we got judgments, we got acts, rules, articles, everything in search. That's the only difference, nothing else. The result would be the same. It will be either less, that means restricted to only Supreme Court judgments, or it will be having all of it. We go for search everywhere. I hope this is all right, ma'am. We can move forward. Yes. Go to the next one. That's find by party name. Now in this, like the name suggests, you can search with any of the judgment with the help of the party. Now first thing first, you can search. You have to select there is it a Supreme Court judgment or a High Court judgment, or if you have any doubts, you can click on all jurisdiction. But let me take an example of Supreme Court itself. I take Supreme Court. I'm taking a case which we all know it's a overruled judgment. So I'm going to take Golak. Find case. You see this? The judgment of Golak State of Punjab is here. You don't have to write the full party name, just few names, out of the full party name, and it'll give you the judgment. Click on this. Click on go. And there we have it. Now we see this, ma'am. Now I think to all the members, we've been talking about head notes and all. It will make a lot of sense now. You see this? It says judgment is 1, digest notes are 120. That means there were 120 different points of law which were discussed in this one judgment. And what we were doing earlier, we were searching for a topic. So if that topic was a part of this, only one head note was coming in that search. But now because we have searched for the party name, it is giving me all the head notes related to this judgment. Now let's have a look. It says Supreme Court J11. Now what does this J means? J means it's a full judgment. And 11 signifies that the quorum, the bench consists of 11 judges. Right. And the same thing 11 comes over here. And then D signifies it's not a judgment, it's a head note. It's a digest note. And now without even reading the full judgment, all of us can figure it out what the case is related to. Now if we scroll down further, it says talking about the meaning of estate, talking the meaning of declared, then talking about meaning of estate, fundamental rights, then constitutional amendments, committee reports relied on Justice Subha Rao's by Justice Subha Rao, Chief Justice Subha Rao, sir. Then constitution as a whole to be looked at, not a part of it. Then emotional arguments, that's something we want to get into. And if it keeps going down, you'll keep getting to know what has been discussed in this particular entire case. And judicial review, parliamentary supremacy in India, rule of law, supremacy of constitution, effect of power, and other things. So we all know that this case was about the fundamental rights. So that's why the nature of fundamental laws and rights are coming very often, reservation of fundamental rights by its people. So you can know. And now if I click on any of this, let's take this one, reservation of fundamental rights by people.
you see only that point of law comes over here. You click on the next one. What was discussed in the judgment, that comes over here. And if some particular lordship has given his view, and only he was the one who's given his view, it'll say possession of right and his exercise distinction as per Justice Hidayatullah. So उन्होंने जो बोला वो यहाँ लिखा हुआ है. If we go further down, as per majority, what was discussed on this point is being given over here. So you are, you know, what is happening is right now, though you're getting the head note like point-wise analysis, but you're also getting to know that this point, there were 11 judges, there can be 11 different opinions, which means you have to read all entire judgment to understand one point of law. But with this made available, you get to see on this point the majority view is here. So in simple words, you just went 11 judges point judgment on this point within less than what? I think 1 minute. This is the power of head notes. Now, if I keep scrolling down, I'm looking for something on the screen, and that is this. Now, what is this? The red exclamation mark. It says red exclamation mark means it's overruled. Okay. That means we don't say, okay, this is for all the members. We don't say a judgment is overruled because it's very easy to say it. If you do a Google search right now and ask Google that Golnath case is overruled or not, everyone will say it's overruled. And I think I'll talk on my behalf. I think it is an incorrect statement to say a judgment is overruled. Because if you say a judgment is overruled, that should first, match this statement that all these 120 points of law has been struck down. If all 120 points of law has not been struck down, that means it is incorrect to say the entire judgment is overruled. Which means that only few points of law is overruled. But now the problem comes in, I'm sure we all do researches. In order to find out that which point of law has been overruled, I need to read my judgment, which I think is overruled, and then I have to read the judgment which has overruled my judgment. And after doing study of both the judgments, I will then come to conclusion on which point of law this was overruled, which will not take less than, I think, 5 to 6 hours, considering if this is a judgment, this is running into, I think, 500 pages long judgment. So I'm actually being very, very, positive by saying 5 hours. You have to read this judgment and then the subsequent judgment as well. But that is not required anymore. I see this point of law is overruled. So that is Article 368 and preamble, limitation imposed by preamble. What was the view? This was the view. You scroll down. It was overruled in Kesavananda Bharti case. That's it. Yeah, scroll down further. I might find more. Yeah, there it is. We have more head notes like these. So my suggestion to all the members, whenever you open a judgment with the help of a citation or a party name, you only get one judgment because citation or the party name is unique. But you'll get a lot of head notes. So come over here. The first thing you should do, come under the logo of SSC Online. It says search within search and search for the topic overruled. Don't have to, scroll down and everything. I'm sorry, something wrong. So I just try to search. So next time, just search for overruled and start search. So what you are looking for, otherwise scrolling down and all, it's not required anymore. Simply by doing a sub-search overruled, you'll get all the head notes in one place. That's it. Now the points which does not have this exclamation mark, those points are not overruled. But probably a word was coming in the text of the judgment or the head note. But now I know out of 15, 12 points of law has been overruled and the remaining 3 are good law. And I click on any of this, it'll give me all the information pertaining to that point of law. There we are. So this will save a lot of time. This will also help a lot of students, to have that confidence and have the clarity
that can I cite the judgment if on a particular point, or can I cite the judgment? And also going with the preparation for the moot courts or finally into the actual litigation, and knowing that which part of the case can be used against me and which part of the case I can use against the other party. And there we have it. Can we go back to the original search? Yes, we can by clicking on this cross sign. I cross it and can go back. Chetan, one query I have. Yes, Do we people have any database based on Hindi also? Ma'am, Hindi, we don't really convert anything on Hindi. However, if the judgments have some Hindi portions in it, we have it. But there's no translation that we do as such. Okay, any subsidiary of SSC online only which is providing Hindi information in Hindi? Actually, here in Kanpur University, it is fine. Our students also understand that the research material is not available in abundance in Hindi, but majority of the students, they are Hindi based. I understand, ma'am. Yeah, and in the first semester, there is a huge problem with them in making them understand the legal terms and everything. So I just asked for that. I can give you one solution to this, not in the judgment, because I'll. What happens, ma'am, that when you translate anything with any translation softwares, some words, then they get converted. It means something totally different. So, any judgment you convert, you have to, go through it, and then it loses the authenticity. Because if I give anything on the Hindi, but the court has given in English, it is not an approved copy. But just to answer that, just to have that understanding of legality, ma'am, if you allow me, I will just read this example first and then move to that question. Yes, go on. Yes, ma'am. Now I'll come to that part for the initial years, when the student want to understand from Hindi to English and what are the legal terminologies are. But before that, we want this judgment of Goloknath. Now this judgment, we know that this judgment is of a high importance. Now if you see this judgment, it says, sorry, Chief Justice Subha Rao, Justice Vanshu, Justice Dayatullah, Justice Bachawat. Now couple of names are in bold and the remainings are in plain text. Iska matlab ye hai, sir. Whenever you have any judge's name in the blue highlighted bold color, it simply means that they have authored the judgment. और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें जो जजमेंट पढ़नी है, वो जजमेंट किस जज साहब की पढ़नी है, वो पता होता है. So I don't know read what Chief Sir said. I want to read what Justice Hidayatullah said. So I click on Justice Hidayatullah's name. I'll jump to his part of the judgment. And I click on his name again, I'm back to the top. Similarly, I can see Justice Vanshu, get to Justice Vanshu. Now the question comes in, which is going to be a very, very common question for students, for faculty members. हम रिसर्च क्यों करते हैं? रिसर्च इसलिए करते हैं कि हम लोग जो सर्च कर रहे हैं उसको हम कॉपी करके अपने रिसर्च में डाल सकें या अपने सबमिशन में डाल सकें उसको. तो कॉपी पेस्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है. अब यहाँ पे दो तरीके हैं कॉपी करने के. एक जो हम सब लोग जानते हैं, हाईलाइट करके कंट्रोल C कंट्रोल V कॉपी पेस्ट हो जाता है कहीं पे भी. बट SCC ऑनलाइन में कई डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो कि आपको हाईलाइट करने देंगे और कई ऐसे होंगे जो हाईलाइट करने नहीं देंगे आपको. जो करने देंगे आपको हाईलाइट, देखिए यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा तो हाईलाइट नहीं होगा. जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है वहाँ पे सिंपल हाईलाइट करिए, कंट्रोल C कंट्रोल V कर लीजिए, कहीं पे भी कर लीजिए. जहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा, जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा, वहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके सामने आइकन बने होंगे, ये वाले आइकन बने होंगे. आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है इनके ऊपर. जो पैराग्राफ चाहिए आपको, मुझे ये पैराग्राफ चाहिए, ये पैराग्राफ चाहिए, मैंने पैराग्राफ ले लिए.
और उसके बाद 3-4 पैराग्राफ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, there's an option of smart copy. मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे पैराग्राफ मेरे अलग विंडो में कॉपी हो जाते हैं. सो अब देखिए इसमें ये भी है, इसमें दिस आई हैवंट टेकन, जो पार्टी का नाम था वो दिया हुआ है, साइटेशन दी हुई है साथ में, और फ्रॉम हियर यू कैन कॉपी as you want, control C, control V in Word file, email it to yourself or to someone else as well. So process was very simple. You click, do a single click on the paragraph you want, and then you simply come over here and say smart copy. And that's how you get copy the paragraphs. और यहाँ से उठा के copy कर सकते हैं. So this is smart copy. अब दूसरी चीज, हमने ट्रू प्रिंट आउट की बात कर ली, तो आई विल नॉट डू दैट ओवर हियर. हम बात करते हैं कि केस बहुत ही इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट, तो काफी जगह ये केस साइट भी हुआ है. तो आई वांट टू सी ये केस कहाँ साइट हुआ है, सो दैट आई कैन फाइंड सिमिलर केसेस. उसके लिए you see this option, this says case reference. Let me zoom in. This icon next to this smart copy icon, this is icon of case reference. अब क्या होगा, जब भी कभी कोई भी केस खोला आपने, कि मैं गोल्डन केस खोला मैंने, आप यहाँ पे आइए, एक क्लिक कर दीजिए. We're doing one click. What will happen is, see, it says one judgment over here. One click on this will change. It'll show you all the cases where this case was cited as a precedent. Excuse me. And there we have it. करीबन 85 judgments from Supreme Court. Sorry, 51 from Supreme Court. 17 हाई कोर्ट से. हाई कोर्ट वाइज हम जाते हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 जगह पे साइड किया इस केस को. आंध्रा ने एक जगह, बाकी ऐसी सेम है. फॉरेन केसेस ने भी सर्च हुआ है. ये केस साइट हुआ है बांग्लादेश के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, यूके के अंदर और यूएस के अंदर भी. So this way, with one click, the students can get so many judgments with finding one landmark judgment. I'll move to the next option, ma'am. That is find by citation. Abhi bhi, to be honest, I can still go another 15 minutes on find by party name, but I think we'll keep it short and simple so that we get more time for research. And also, once we sit down with your students, we'll get into the the advanced searches more. Because I don't want कि next time आप लोग बैठे और आप कहें कि ये पता है हमें. We want to have that wow factor even the next time you come in this session. I'll show you one more part over there. Sorry, I'll move to the next one. Find by citation. That is, I was saying that you can search with any citation. Now see this. Supreme Court cases. नहीं, ये नहीं, आप अपना दिखा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है. एआईआर वाला दिखाइए चेतन जी, मजा नहीं आ रहा है ये. आपको और दिखा दूं सर. नहीं, ऑल इंडिया रिपोर्टर दिखाइए, हम देखें आपका ऑल इंडिया रिपोर्टर कैसे निकलता है, तभी तो पता चलेगा कि आपकी कितनी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है. हाँ. Ma'am, let you give me one particular year. You give me a particular year. Sensor, you give me a year. You give me a page number, random. Okay. Priya ma'am, give me any year. 75 XCC 288. Okay, 19. 75. 75. XCC SC 288. 280. Ma'am, 288. 288 तो है ही नहीं मैम. है नहीं. ऐसे कैसे? तो 280 कर दीजिए. हाँ, 280. देखिए हम इसमें हो क्या रहा है. I could say that 288 है नहीं है. The moment you put the minimum citation, bare minimum citation, it'll get for the entire volume. और हमने 280 डाला तो यार 280 में दो ही ऑप्शन आ गया. 280 है या 280 है. 280 ले लेते हैं, get citation. अब क्या ये AIR citation है? AIR citation क्या जजमेंट AIR की है? नहीं. जजमेंट इज ऑफ SCC एंड जो citation है इतने सारी देर की यहाँ पे आपकी दोनों की. So SCC या AIR दोनों से सर्च कर सकते हैं. That's what we're talking about. Equivalent citation gets you all the judgments. तो आपका कहने का मतलब ये है चेतन कि चाहे हमारे पास ऑल इंडिया रिपोर्टर की साइटेशन हो, चाहे किसी भी और लॉ रिपोर्ट की साइटेशन हो, हम जब उसको साइटेशन को डालेंगे और इस साइटेशन ट्री से डालेंगे तो हमें या तो एसएससी का साइटेशन का वो नजर आ जाएगा
या किसी और हमारे जो पब्लिकेशन पार्टनर्स हैं जिनका हमारे पास हेड नोट है, जिनके हमारे पास ट्रू प्रिंट्स हैं, वो हमें विजिबल हो जाएंगे और यस, हमारे को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एब्सोल्युटली। वेरी बिकॉज गुड। देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ, आईएलआर से टाई अप कर रखा है। I cannot give you AIR because for a simple reason, we don't have a tie with AIR, so we cannot do a authentication check of their judgments. AIR is doing a fantastic job. AIR is a very renowned publisher. I'm not saying anything against them, but because we cannot do a due diligence with their with their judgments, because we don't have a tie-up, so we're not giving their judgments. On the contrary, because we have a tie-up with ILRs and others, and we have that understanding of the quality checks and all, so we give you their judgments. कॉपीराइट के लिए भी आई थिंक कुछ पेमेंट करनी होती हाँ। होगी जो वो भी बता दीजिए। ऐसा नहीं है, मतलब टोटल लाइब्रेरी इस समय प्रिया मैम और जो दूसरे जो जितने भी हमारे जो माननीय जो है इस समय जो श्रोतागण जो है हमारे हैं, उनके लिए बताना जरूरी है कि कुल मिला के लगभग 15,000 वॉल्यूम की लाइब्रेरी अब हो गई है टोटल, जबकि एसएससी जो है सिर्फ 483 है। 1969 का जो पहला वॉल्यूम था, जिसे 1969 1 एसएससी 1 से शुरू करते हैं, और वो 2020 का लास्ट वॉल्यूम जो हमारा एसएससी का है, टोटल 483 हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें लगभग 12,500 वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। So वो I think that's what matters कि 500 to 15, like मैम जो मैं पहले बात कर रहा था आपको मैं कि what we are doing, we're not giving you a legal research software, we're giving you actually a virtual library. अरे बड़ी बदामी शुरुआत थी यार हमारी एसएससी में। देखिए पहला केस है मिस्टर बी शंकर राव बदामी। वाह। वही ऑन द लाइटर नोट कुछ थोड़ा थोड़ा मजा भी कर दे रही है। बड़ा सीरियस आप जो सेशन ले रहे हैं, ऐसे कैसे? मतलब आइए चलिए अब व्हाट्सएप पे चलते हैं और ढूंढते हैं बनाना कहाँ मिलेगा। जंगल में एक मिलेगा कि एक एग्रीकल्चर लैंड में मिलेगा? खत्म कर ले, मैंने इसको फिर यार चले आगे। चलिए आपके दिखा लीजिए, नहीं मान आपके रहे आप। आपके 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 फॉरेस्ट को एक बार में रुक के हम गेड़ा मारेंगे हम लोग। इसको खत्म हाँ। कर लेते हैं एक बार। Find case number section before we jump to the most interesting searches, that is word search. इसमें ना सिंपल चीज है मैम। जैसे आपने बोला कि आपके स्टूडेंट्स will have some challenge and all stuff, and not from the language but also from the first year students को काफी बारी क्या होता है, उनको हर चीज एक प्रोसेस स्टेप वाइज चलनी पड़ती है, बिकॉज दे डोंट नो अदरवाइज कि कहाँ सर्च करना है। तो ये सेम चीज, फाइंड सेक्शन ऑफ एन एक्ट, पहले आकर कोई भी आपको एक्ट देखना है यहाँ पे आपको अंदर, जैसे कि लेट्स टेक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लेता हूँ मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट डालूंगा यहाँ पे, इंडियन मत डालिएगा। सो इंडियन पीनल कोड मत डालिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मत डालिए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या पीनल कोड डालिए। हमने इंडियन वर्ड हटा दिया इसमें से। ये कॉन्ट्रैक्ट डाला मैंने, सेक्शन 17 पे क्लिक करता हूँ, जो कि आई थिंक सब लोग जानते ही होंगे, आपके स्टूडेंट भी जानते ही होंगे। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ या क्लिक गो पे क्लिक करता हूँ, कोई भी एक चीज कर सकता हूँ मैं। Within no time, you'll get judgments on section 17 of the Contract Act in front of you. It's as simple as that. So कोई भी एक्ट खोलिए, कोई भी सेक्शन सिलेक्ट करिए, आपको जजमेंट मिल जाएंगे उस सेक्शन के ऊपर। देखिए Sir, before I hand over the baton to you for the word search, I had promised ma'am something about the translation. So I'll take her to the blog quickly and then come back. प्लीज। मैम जो मैं बात कर रहा आप लोगों से कि ट्रांसलेशन का प्रोविजन है, एसएससी में तो नहीं है, बिकॉज मुझे बताया आपको कि ऑथेंटिकेशन वुड बिकम अ चैलेंज इफ यू ट्रांसलेट एनीथिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। बट नहीं देखिए नहीं, ये एसएससी, एक सेकंड, करेक्शन इन द स्टेटमेंट, एसएससी पोर्टल के अंदर ना होके एसएससी का ही जो दूसरा एसएससी ऑनलाइन ब्लॉग है, उस ब्लॉग में ये चीज अवेलेबल है जो आप चाह रहे हैं। अब पोर्टल में क्योंकि जो रिसर्च का जो मटेरियल होता है वो कोर्ट का रेफरेंस मटेरियल है, और जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जितना भी जो भी हमारा ऑथेंटिकेशन चल रहा है, वो सारा क्योंकि वहाँ के जजमेंट्स का प्रोनाउंसमेंट भी इंग्लिश में है, और जो भी कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं सारे इंग्लिश में हैं, और जितने भी लॉ रिपोर्ट्स हैं सब इंग्लिश में ही पब्लिश हो रहे हैं। बाइलिंगुअल बहुत कम पब्लिश होते हैं। तो हम लोग ने जो भी जिनसे भी हमने टाई अप किया हुआ है, और हमारा खुद का भी जो पब्लिकेशन है वो इंग्लिश में ही है, तो हम लोग उसी चीज को, ऑथेंटिसिटी को मेंटेन कर रहे हैं। हम उसको, उसका अनुवाद हिंदी में करके यहाँ साथ में नहीं दे रहे हैं पोर्टल पे, बिकॉज जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जितने स्टेट जुडिशरी के ऑफिसर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वो सब लोग जो हैं यही पोर्टल यूज कर रहे हैं फॉर देयर ऑथेंटिक
क्रिटिकल जुडिशियल डिस्पेंसेशन वर्क, तो वहां पे हम अनुवाद में गलती हो जाए, उसकी वजह से किसी आदमी को जो है नुकसान पहुंच जाए जजमेंट के उसमें, क्योंकि हमारा ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हुआ, तो वो चीज शायद बहुत ही एक्सेसिव वो हो जाएगी। इसलिए जो है इसके अंदर अभी तक उसका अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं किया है। However, we have the technology and the same is implemented on SSC online blog. Over to you, Chetan. So, so to all the members, हम अगर पे जाते हैं सिस्टम ब्लॉग पे जाते हैं, तो ये आपके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के भी काम आएगा, आपके फैकल्टी मेंबर्स के काम आएगा, और एनी सीनियर स्टूडेंट के काम आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो क्या देना चाहते हैं। देखिए, पहली चीज मैं पहले आपको आंसर करता हूँ कि कैसे कन्वर्जन होता है, ट्रांसलेट कैसे होता है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे हल्का सा, यहाँ पे है सेलेक्ट लैंग्वेज। आप हिंदी की बात कर रहे थे, मैं आपको सुझाव दे देता हूँ। सिलेक्ट लैंग्वेज में यू कैन सिलेक्ट एनी लैंग्वेज, एनी रीजनल लैंग्वेज। सो लेट्स टेक हिंदी। so, मैं हिंदी में क्लिक करता हूँ। ये पूरी वेबसाइट ही आपकी हिंदी में कन्वर्ट हो गई है। न्यूज हैव बिकम समाचार, होम हैज बिकम घर, एंड ओपीडी जो ओपीडी रहेगा, विशेष कॉर्नर विच इज ऑल एक्सपर्ट कॉर्नर बिकेम विशेष कॉर्नर। एंड आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, सो आई डोंट हैव टू रियली कि ये केस ब्रीफ थे, ये हमारा लेजिस्लेशन है तो कानून लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड बाकी चीजें सारी आपकी चलती रहेंगी यहाँ पे। अब इसका काम कैसे करना है इसके, देखिए केस ब्रीफ है एक चीज, मैं केस भी तो रुक के आता हूँ, पहले लगता है समाचार पे चलते हैं। तो ये समाचार में लिखा हुआ है नई okay, sorry, I can't read this. New releases. Then this is business news, व्यापार समाचार। हाल में ही छपा हुआ कुछ, like hot of the press। अब मैं इसमें लेता हूँ, hot हाल में ही छपा हुआ कुछ नया क्या है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कुछ जजमेंट ही हो। देखिए, अमेरिका नागरिकता और आवासन सेवाएं कानूनी, I think I'll just read in English. That's much easier for me. U.S. Citizenship and Immigration Services updates policy to improve legal immigration processes. That comes over there. ऐसे ही करते करते आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, अगर आप, जैसे कि मैं इस पे ले लेता हूं मैं, तो हालांकि ये जजमेंट नहीं है, बट एक कुछ ओशो के एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने रखी है, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपके सामने ब्रीफ में लिखा हुआ आ गया। आप पढ़ेंगे उतना, इट्स गुड इनफ फॉर यू, यू मूव फॉरवर्ड। सिर्फ सिंपल सिनॉप्सिस दे रखे हैं, इतना ही नहीं, ये तो समाचार का हो गया। अब जो मैं बात कर रहा था कि स्टूडेंट्स के लिए, अब ये स्टूडेंट्स के लिए मैं कहता हूँ केस ब्रीफ में चलते हैं हम लोग। अब ये सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, या सुप्रीम कोर्ट जनरल, हाई कोर्ट वगैरह सबका है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट ले लेता हूँ इसके अंदर, और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब देखिए, प्रवासी मजदूर 31 जुलाई तक सभी राज्यों में हकीकत होगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। अब एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्देश आया इसके ऊपर। अब मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ। ये सिंपली ब्रीफ लिखा हुआ है, उसका क्या है ब्रीफ, पूरे जजमेंट जो ब्रीफ पढ़ रहे हैं उसका ब्रीफ ऊपर लिखा हुआ है। 29 जून को ये छपा था, और देखिए जो जो बोल्ड में लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो ओरिजिनल कहते हैं जजमेंट से उठाया गया है, और उसका ब्रीफ, जजमेंट का पूरा ब्रीफ दिया हुआ है। 27 जून को हमने ये पब्लिश किया है, और ये आया कब था मैं देख लेता हूँ, ये कब का है वो, ये 29 जून तो ये कब है यार, क्या लिखा मैंने, 29 जून को आया था, 29 जून को। सो ये जजमेंट जो आया था 29 जून को आया था, को तय किया गया था, और 29 जून को सेम डे ही ये इतना बड़ा ब्रीफ बना दिया गया था आप लोगों के लिए। तो जितनी नई जजमेंट आएंगी, आपके स्टूडेंट को सिंपली केस ब्रीफ पे जाना है, उच्चतम न्यायालय पे जाना है अगर सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं आप, या अगर कहते हैं हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जा सकते हैं आप। और सारी जजमेंट जो है उनके ब्रीफ, लाइक न्यूज़पेपर जैसे आता है, वो यहाँ पे हेडिंग आ जाएंगी,
कि 12वीं कक्षाएं के लिए राज्य बोर्ड ने जो छात्रों को राहत दी है वो क्या है, कैसे है, वो सब आएगा। फिर क्लिक ऑन दैट। ये 25 जून को हमने पब्लिश किया था। क्या बात हुई थी वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये 24 जून को आया था, तो विद इन 1 डे ये अपने यहाँ पब्लिश हो गया। तो इस तरह सारी जजमेंट जो सारा जो ये वेबसाइट बनाई हमने एसएससी ब्लॉग, ये सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है हिंदी के अंदर। और हम इसके अंदर लेट मी गो बैक टू इंग्लिश एंड क्विकली शो इट टू यू, शो ओरिजिनल, it'll be easier for me to remember what it was, where it was. Similarly, जो कानून लिखा होता है legislation, अगर आप चाहते हैं कोई amendment into existing laws देखना या ordinance देखना, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है चेतन, you can skip this, we are clear on this. And can we move towards concluding? Yes. So I think I'll just pass on the baton to Kapoor sir now. Sir, word search. आइए। वाह वाह, finally. थैंक यू सो मच चेतन, एंड आई एम श्योर कि आप सभी ने काफ़ी चीज़ें जो है पहले से देख ली हैं। अब हम इसमें और आगे जाएं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने भी कानपुर यूनिवर्सिटी में 1985 में अपना केमिकल टेक्नोलॉजी से जो है कंप्लीट किया था। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आज ये सेशन अपनी ही यूनिवर्सिटी या अपने जो पुराने जो है उससे जो है मैं एसोसिएट हो रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो नॉट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं एक छोटी सी चीज़ के लिए बोलूँगा कि अभी तक चेतन ने जो भी आपसे, मेरे कोलिग ने जो भी आपसे जो है वो अलग अलग फीचर्स का जिक्र किया, उसमें ज़्यादातर में आपको कुछ ना कुछ मालूम था। जैसे वर्ड एंड फ्रेजेस में आपको एक वर्ड के बारे में मालूम था, साइटेशन में आपको एक साइटेशन के बारे में मालूम था, पार्टी नेम्स में आपको एक ना एक पार्टी का नेम मालूम था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी। और जैसे आप स्टैट्यूट्स में गए तो आपने वो बेयर एक्ट्स में जो है आपको एक एक्ट का नाम मालूम था कि मुझे इस एक्ट के बारे में ही पढ़ना है और उसी के बारे में हम ज़्यादा जो है जानकारी जानना चाहते हैं। तो हम लोगों ने आई थिंक वो चीज़ें जहाँ पे नोन एरियाज हैं उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। अब हम जो है वो अननोन टेरिटरी में, जहाँ पे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है, ना तो पार्टी नेम है, ना तो साइटेशन है, ना तो ये मालूम है कि कौन से जुरिस्डिक्शन का है, सुप्रीम कोर्ट का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का है, दिल्ली हाई कोर्ट का है, कहाँ का है। और हमें बस सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट दी गई है कि बनाना प्लांट इज नॉट ए ट्री। चेतन, अगर आपने कोई एग्जांपल लिया होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कि हम पहले ले चुके हैं। I haven't, sir. जी, बनाना प्लांट इज नॉट अ ट्री। हमारी रिक्वेस्ट रहती है अपने सारे ही जो यूजर्स हैं उनसे कि पूरी स्टेटमेंट आप पूरी टाइप ना करें। उसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि गूगल और हमारा प्लेटफॉर्म लगभग एक तरीके से ही चलता है। वर्ड बेस्ड सर्च जो है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है जब कम से कम वर्ड के ऊपर सर्च की जाए। ज़्यादा वर्ड होंगे तो सर्च के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। वो हम अभी कुछ और एग्जांपल लेंगे, आपको प्रूव भी करेंगे। तो अब इसमें देखिए हमारे लिए कीवर्ड क्या हैं। इसमें कीवर्ड हमारे लिए बनाना, प्लांट और ट्री, मैक्सिमम 3 वर्ड रखने हैं, 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं रखने हैं। तो चेतन प्लीज ये बाकी तीनों हटा दीजिए, बनाना, प्लांट, ट्री अगर हम ये लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या नतीजा निकलता है इसका। चेतन ने शायद बोला भी होगा आपको कि लगभग 40 लाख जजमेंट और ऑर्डर्स इस पे पहले से ही अवेलेबल हैं और हर साल लगभग 2.5 से 3 लाख और ऐड हो रहे हैं। 2.5 से 3 लाख नए ऑर्डर और जजमेंट्स हर साल और ऐड हो जाते हैं, क्योंकि अब हम ट्राइब्यूनल्स और कमीशन भी कवर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स भी कवर कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है हम बहुत ढेर सारे इंटरनेशनल कोर्ट्स भी कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी मेजर इंफॉर्मेशन जो है अपडेट हो जाती है हर रोज और हर महीने। मतलब मैंने आपको बताया कि 2.5 से 3 लाख जजमेंट और कितने पन्ने, वो तो शायद हमें भी नहीं पता होता कि कितने जा रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट इसमें आया, वही 3 कॉलम स्ट्रक्चर आ गए। पहला वाला जो कॉलम है वो आपको बता रहा है कि डाइजेस्ट नोट्स 2 हैं, जजमेंट 54 हैं, और एक्ट में, रूल्स में, नोटिफिकेशंस में काफी जगह पे आपको उसका रेफरेंस मिल गया है। बनाना, प्लांट और ट्री तीनों वर्ड मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी हेल्प हमारे लिए जो अवेलेबल है, ज्यादातर टाइम पे हमारे पास टाइम की जो है वो पॉजिटिव होती है। हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम कितनी जल्दी ये रिसर्च कर लें, कैसे कर लें। तो हमने ये जो डाइजेस्ट नोट दिए हैं, देखिए उसमें सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं, और अगर हम बीच वाला कॉलम देखते हैं तो हमें वो 2 नंबर में डाइजेस्ट नोट सबसे पहली 2 पोजीशन में पड़े हैं। देखिए डाइजेस्ट नोट डी दिखाई दे रहा है सर्कल के अंदर, उसमें लिखा हुआ आ रहा है, देखिए डाइजेस्ट नोट, और साथ में
हम देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे भी वही जजमेंट दिख रहा है जो डाइजेस्ट नोट्स वाला है, और जजमेंट का नाम जो है मीर फकीर मोहम्मद है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट की जजमेंट होते हैं ना, वो सबसे ऊपर ऊपर लग जाते हैं। ये सारा काम हमारी सॉफ्टवेयर की जो एल्गोरिथम है, जो सॉफ्टवेयर जो है अंदर से हमने जो उसको डिजाइन किया हुआ है, उसको उसको अपने आप ऑटोमेटिकली उसको पोर कर देता है। आप ये भी देखते हैं कि तीसरे नंबर पे जो जजमेंट का पार्ट दिख रहा है, उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो हाईलाइट हो रही है, द क्वेश्चन बिफोर अस देयरफॉर रिजॉल्व्स इनटू द इशू वेदर ए बनाना प्लांट इज अ ट्री, जो कि मैं देखना चाह रहा था या जो हम देखना चाह रहे थे। और अब हम तीसरे पैनल पे आते हैं। जो पहला डाइजेस्ट नोट जो हाईलाइटेड है, देखिए उसमें टिक भी लगा हुआ है बीच वाले कॉलम में, उसी का जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट हैंड साइड पैनल पे डिस्प्लेड है। अब राइट हैंड साइड पैनल पे जो है, जो पहली लाइन बोलते हैं बनाना प्लांटेशन इज नॉट एन ऑर्चर्ड, बनाना प्लांट इज नॉट ए फूड ट्री, और इसमें पहले पैराग्राफ में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कल्टीवेटेड फ्रूट ट्रीज। इसमें लिखा है फॉर ए प्लांट टू कम इन द कनोटेशन ऑफ ट्री इट मस्ट हैव टू एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मस्ट बी पेरिनियल and not seasonal, and its main stem must be woody and not herbaceous or pulpy. A banana plant lacks both of these characteristics. और लास्ट में लिखते हैं कि thus considered a banana plant cannot be regarded as a fruit tree. हमारा जो कोर इशू था कि बनाना प्लांट ट्री है कि नहीं है, वो हमने इसमें देख लिया। अच्छा, ये इशू क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया कि बनाना प्लांट की क्लासिफिकेशन कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? मेरे को भी थोड़ा सा जो है अनईजी लग रहा था। अब इतने इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कशन पड़े हैं करने को, ये बनाना प्लांट के ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? लेकिन व्हेन आई रेड द कंप्लीट जजमेंट, मुझे भी रियलाइज हुआ कि वाकई इंपॉर्टेंट था। मिस्टर मीर फकीर मोहम्मद साहब जो हैं, इनकी कुछ लैंड एक्वायर हो गई थी जिसपे उन्होंने बनाना प्लांटेशन जो है वो लगा रखा था। तो क्वेश्चन ये था कि बनाना प्लांटेशन जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है कि फॉरेस्ट लैंड है? अगर फॉरेस्ट लैंड होता है तो शायद कंपनसेशन ज्यादा था, और अगर एग्रीकल्चर लैंड था तो कंपनसेशन कम था। इसलिए मीर फकीर मोहम्मद साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए फॉर डेफिनेशन ऑफ वेदर बनाना प्लांटेशन जो है वो ट्री है कि नहीं है। तो ट्रीज का जो है वो कनोटेशन में नहीं आ रहा था, तो उनकी कंपनसेशन अकॉर्डिंगली उनको मिली। तो कितना ही आई थिंक माइन्यूटली जो है चीजों को चेक किया जाता है, इसके बारे में जान के मैं भी बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज था। अब आगे चलते हैं, वापस वर्ड सर्च पे चलते हैं। तो आपने ये देखा कि अगर आपके पास कोई वेग सी स्टेटमेंट भी है जिसमें कोई लीगल वर्ड नहीं है, बनाना प्लांट ट्री में कोई लीगल वर्ड नहीं है, तब भी आप उसको सर्च कर पाए। तो जब भी कभी आप कुछ सर्चेस करने लगते हैं, तो सर्चेस जो है दो तरह की होती हैं। सर्चेस एक होती है जिसमें आप लीगल फ्रेज देख रहे होते हैं, दूसरी होती है जिसमें आप नॉन लीगल फ्रेज देख रहे होते हैं। तो अभी हमने जो पहला सर्च किया वो नॉन लीगल फ्रेज का था। अब हम करते हैं लीगल फ्रेज की सर्च। लीगल फ्रेज की सर्च करने के लिए आपको लीगल फ्रेज जो है उसको डबल नोटेड कोट्स में डालना है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दैट सर। आपको तो मैं एक सर्चेस जो है, मैं मल्टीपल सर्च विद इन सर्च वाला सर्च ले लेता हूँ। बताइए। हम एक एग्जांपल लेते हैं डावरी डेथ केस की। और अगर हम डावरी डेथ केस को अगर हम करते हैं, तो डावरी डेथ जो है एक लीगल एक्सप्रेशन है। उसको डबल नोटेड पे सर्च करने पे हमें वो सारे जजमेंट्स, ऑर्डर्स और जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पोर्टल पे अवेलेबल हैं जहाँ पे डावरी डेथ एक्सप्रेशन आ रहा है, वो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं और वो ये रहे हमारे सामने। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डावरी डेथ का जो एक्सप्रेशन था वो सब जगह सेलेक्ट हो जाएगा, तो लगभग 4,948 रेफरेंसेस आ गए इसके। इसमें 1195 डाइजेस्ट नोट हैं, जजमेंट करीब 3642 हैं, और भी काफी चीजें मिल गई हमें। लेकिन मेरे केस में जो डावरी डेथ हुई है वो बर्निंग से हुई है, ब्राइट बर्निंग। तो ब्राइट बर्निंग हमारा अगला फ्रेज है, हम उसको सर्च करते हैं, ब्राइट बर्निंग को सर्च करते हैं। ब्राइट बर्निंग, इसको भी देखिए चेतन जी ने डबल इन्वर्टेड कोट्स में डाला है। स्टार्ट विद डबल कोट्स, क्लोज विद डबल कोट्स, तो दोनों आगे। अब नंबर घट के 615 रह गया। हमारे वाले केस में ब्राइट ने एट द टाइम ऑफ डेथ या बिफोर डेथ एक डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एक बार नहीं कई बार दी। तो वो कई बार डाइंग डिक्लेरेशन हो रही है, तो लेकिन कम से कम पहले डाइंग डिक्लेरेशन तो देखें। इस केस में डाइंग डिक्लेरेशन को फिर से सब सर्च करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन, प्लीज नोट कि डाइंग डिक्लेरेशन भी चेतन जी ने डबल नोटेड कोट में टाइप किया है, और नंबर फिर और कम हो जाएगा, और इस बार नंबर 217 रह गया। डाइजेस्ट नोट्स भी बहुत कम हो गए, लगभग 92। बट मेरे वाले केस में क्योंकि मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस हैं, इसलिए मैं ये चेक करना चाह रहा था कि क्या मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन लिखना चाहिए कि 2 डाइंग डिक्लेरेशन लिखना चाहिए, 3 लिखना चाहिए। तो मेरे को वेगली मेमोरी में आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था मोर देन 1 डाइंग डिक्लेरेशन इन केस इट इज देयर देन दिस प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड। तो हम मोर देन 1 सर्च करते हैं चेतन जी, इसके अंदर डबल नोटेड कोट्स में मोर देन 1 सर्च कीजिए, मोर देन 1।
जब हम ये मोर देन वन सर्च करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है। मोर देन वन सर्च करते ही टोटल नंबर ऑफ नोट्स एंड जजमेंट जो है हैव श्रंक टू जस्ट 90 नंबर्स, और डाइजेस्ट नोट्स एकदम से 92 से 4 हो गए। हमारी इस स्टेज पर आकर अपने जो हमारे यूजर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है हमें कि आप और आगे डाउन साइजिंग ना करें, क्योंकि अब अगर आपने एक भी वर्ड और डाला, या तो सर्च का रिजल्ट हो जाएगा नो सर्च रिजल्ट फाउंड, या हो जाएगा कि एक जजमेंट या एक ही नोट मिल रहा है। तो वो काफी खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि लीगल रिसर्च आपको तभी ज्यादा एम्पावर करती है जब आप दोनों तरफ, वादी प्रतिवादी दोनों तरफ के बारे में जान जाएं कि कौन से जजमेंट जो है वादी की तरफ के लोगों को जो है हेल्प कर रहे हैं, और कौन से जो है अपोनेंट पार्टी की तरफ के लोगों को हेल्प कर रहे हैं। अगर आप दोनों को जानेंगे तो आपकी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो जाती है, और आप कोर्ट में बहुत ही कॉन्फिडेंटली जानते हैं कि अब ये अगली वाली साइटेशन ये वाली लेने वाला है, और आपकी उसकी रिबटल के लिए पहले से तैयारी होगी। अगर ये जजमेंट बोलेगा तो फिर मैं ये बोलूंगा, ये बोलेगा फिर मैं ये बोलूंगा, अगर आपने वैसी तैयारी कर रखी है तो ये स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड करना है कि बहुत ज्यादा सर्च विद इन सर्च नहीं करते जाना है। जैसे ही डाइजेस्ट नोट का नंबर 10 के आसपास पहुंचे, वहां रुक जाइए और वो सारे नोट्स पढ़िए, ताकि आप अपनी नॉलेज को वैसे भी अपडेट कर सकें कि जजेस ने कौन से वाले टाइम पे किस वाले रूट को अडॉप्ट किया, कब इस साइड पे पार्टी को रिलीफ दिया, कब दूसरी तरफ की पार्टी को रिलीफ दिया। तो आपकी स्थिति जो है काफी क्लैरिटी जो है आपको भी मिलेगी, और आप अच्छे से अपनी पोजीशन को असर्टन करके फिर मीनिंगफुल, आई थिंक, कोर्ट रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे अपने क्लाइंट की। तो ये अगर आप इस में किसी को कोई शक है, नहीं तो मैं एक ऐसा ही एग्जांपल और लेने वाला हूं। हम आगे चलें अगले वाले पे, वापस वर्ड सर्च पे चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ लीगल फ्रेजेस ही ढूंढने हों। मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल आता है जिसमें एक लीगल फ्रेज और एक वर्ड अलग अलग से आ रहा था। जैसे कि मैं किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने बोला कि कपूर साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ तो सीधे मर्डर वर्डर के केस होते हैं, मर्डर, रेप, सुसाइड, ये सब होता है। तो आप हमें ना वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दिखाइए कि कुछ केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिग्निफिकेंट नहीं है या नेसेसरी नहीं है, तो ऐसा कौन सा केस कैसे निकालेंगे। अब पोस्टमार्टम तो लीगल फ्रेज है, इसको डबल नोटेड कोर्ट्स में डालेंगे। Sorry. और दूसरा वर्ड हम लेते हैं सिग्निफिकेंट। हाँ, अब देखिए, हमारे पास जब हम ये सर्च करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या देखेगा? सॉफ्टवेयर देखेगा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेज पोस्टमार्टम एंड वर्ड सिग्निफिकेंट एनीवेयर इन द टेक्स्ट ऑफ द जजमेंट। अब वो जजमेंट जो है 100 पन्ने का भी हो सकता है, 1000 पन्ने का भी हो सकता है, और 2 पन्ने का भी हो सकता है। लेकिन अगर पेज 1 पे पोस्टमार्टम आ रहा है और पेज 2 पे सिग्निफिकेंट आ रहा है, तब भी मीनिंगलेस है। हमको तो सेम पैराग्राफ में चाहिए, इनफैक्ट सेम लाइन में चाहिए, सेम सेंटेंस में चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? बीच में नियर टाइप कर दीजिए। अब ये नियर क्या टाइप कर रहे हैं चेतन जी? आप इसके बारे में थोड़ा दिखाइए, बुलियन नियर सेटिंग दिखाइए, नीचे आ रहा है लिखा हुआ। देखिए, ये नियर हमने आपके लिए एक टूल बनाया है ताकि आप एक वर्ड दूसरे वर्ड के पास या एक फ्रेज को दूसरे वर्ड के पास कैसे ढूंढे। तो देखिए, इन्होंने दिखाया कि ये नियर जो है आप खुद सेट कर सकते हैं कितनी पास चाहिए हमें। तो इस केस में हमने बाय डिफॉल्ट 10 वर्ड्स पे ही चलते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 10 वर्ड पे ही दिखाई देता है। जब भी आप टाइप करेंगे तो 10 पे लिखा होगा, जिसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप नियर टाइप करते हैं, जो सिलेक्शन है वो ऑल वर्ड से हट के देखिए बुलियन पे चला जाता है अपने आप ही। और अगर ये कभी नहीं जाता तो बुलियन पे सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो वर्ड नियर को भी सर्च कर लेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं इसको रिमूव करूंगा, देखिए ये ऑल वर्ड्स पे आ गया है। जैसे मैं नियर टाइप करता हूँ, नहीं नहीं, उसमें नियर और उसके बीच में स्पेस नहीं रह गया, कोड के बीच में स्पेस देंगे तब आएगा। हाँ, जी, वहां पहुंच गया जी। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लिखा है हमने, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल सही तरीके से जाएगा। तो हमने अब ये रिक्वेस्ट की है कि पोस्टमार्टम वो फ्रेज और सिग्निफिकेंट वर्ड जहां पास पास मिले वो दिखा दीजिए। अब देखिए मैजिक हुआ, एकदम से हमारे पास 40 लाख जजमेंट और ऑर्डर में से 93 आए। लेकिन उस 93 में बाकी सारे प्रोडक्ट में, चाहे आप इंडियन कानून देख रहे हो, मनुपत्रा देख रहे हो, कुछ भी और कोई और प्रोडक्ट देख रहे हो, सब में आपको लगभग 100-150 के आसपास जो रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन ये जो मोती हम चुन के लाए हैं आपके लिए 5, जो डाइजेस्ट नोट्स में छुपे पड़े हैं, जिसमें से पहले वाला ही कह रहा है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट व्हेन नॉट सिग्निफिकेंट, हमारा काम हो गया। हम जिस चीज को ढूंढने निकले थे वो हम पहले में ही ढूंढ चुके हैं।
आइए, अगर आप ये देख चुके हैं तो हम दूसरे पे चलते हैं, अगले उस पे। अब हम वापस चलते हैं वर्ड सर्च पे। तो क्या ये जो नियर है, क्या हम एक बार से ज्यादा जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, या और कौन कौन से बुलियन ऑपरेटर आपके पास है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे एक सर्च करनी है कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए टेम्परेरी एम्प्लॉय। कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए टेम्परेरी एम्प्लॉय। तो अगर मैं कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट जो है पूरा फ्रेज की तरीके से टाइप करता हूं, नीचे आ रहा है कैंसिलेशन अपॉइंटमेंट, सेलेक्ट कर लीजिए और डबल इन्वर्टेड कोट्स लगा दीजिए। अगर आप डबल इन्वर्टेड कोट्स लगाते हैं तो एज एन एक्सप्रेशन देखिए कितने इसके रिजल्ट्स आते हैं। इसको मैं जब सर्च करता हूं तो ये मुझे कुछ नंबर्स देगा। कैंसिलेशन अपॉइंटमेंट पूरा एक्सप्रेशन सर्च करने से सिर्फ 1017 मिले। अब इसी के अंदर टेम्परेरी वर्ड सर्च कर लीजिए। अगर आप सिर्फ टेम्परेरी सर्च करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट्स आते हैं। वैसे तो ये टेम्परेरी और इसे सर्च करने के बाद देखिए डाइजेस्ट नोट 7 रह गए। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा केसेस ऐसे हुए होंगे जिसमें कैंसिलेशन अपॉइंटमेंट डिस्कस हुआ हो और टेम्परेरी एम्प्लॉयज के लिए हुआ हो, तो ये नंबर गलत है। कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई हमसे। तो क्या मिस्टेक हुई है, आइए देखते हैं। डाइजेस्ट नोट सिर्फ 7 रह गए हैं और जजमेंट टोटल जो है इस समय 136 रिजल्ट और जजमेंट देख आपके सामने नजर आ रहे हैं। टोटल 126 जजमेंट और 7 डाइजेस्ट नोट। लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट बेटर फॉर द सेम प्रोपोजिशन, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। तो हम वर्ड सर्च पे वापस जाते हैं और अपना पुराना वाला एक्सप्रेशन कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट अब दोबारा नए तरीके से टाइप करेंगे और उसमें पूरा एक्सप्रेशन लिखने के बजाय रूट वर्ड लिखेंगे, कैंसिल स्टार। प्लीज सी कि कैंसिल स्टार टाइप करते ही कैंसिल के जितने डेरिवेटिव्स हैं सारे आ गए। कैंसिल्ड, कैंसिलेशन, कैंसिल, कैंसिलिंग एक्सेट्रा। अब अपॉइंट स्टार लिखिए इसके साथ, अपॉइंट स्टार। सेलेक्ट मत कीजिए, वैसे कीजिए तो आएगा, दिखाएगा नहीं तो उसके डेरिवेटिव दिखाएगा ही नहीं अपॉइंट के। नियर हटा दीजिए पहले और सिर्फ अपॉइंट स्टार टाइप कीजिए, तब भी नहीं दिखा रहा है, मान नहीं रहा। कह रहा है देखिए सिंह साहब, ये चेतन जी आप ठीक नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर नीचे दिखा रहा है कि नियर लगाना ही पड़ेगा बीच में। नियर भी लगाइए और ऐसे टाइप कीजिए। तो सॉफ्टवेयर आपको रिकमेंडेशन दे रहा था, जैसे गूगल में दिखाते हैं सजेस्टिव सर्चेस, वैसे यहाँ पे भी दिखा रहे हैं हम आपको। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि चाहे कैंसिल का कोई डेरिवेटिव हो चाहे अपॉइंट का कोई डेरिवेटिव हो, दोनों नियर पास पास मिले। अब इस बार नियर को हम घटा के 5 वर्ड कर देते हैं। नियर को 5 कर दीजिए कि ये 5 वर्ड में मिले, 5 वर्ड से ज्यादा नहीं चाहिए। और बुलियन अपने आप सेलेक्ट कर लीजिए और सर्च कीजिए। बुलियन सेलेक्ट हो गया था, मैंने कर दिया था। वाह 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 वाह, क्या बात है। एकदम से 1017 से बढ़ के नंबर 9339 पे पहुंच गया। घबराइए नहीं, आपको सारे नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा है। तो अब इसके बीच में अभी देखिए हमने आपको दो चीजें बता दी। नियर एक्सप्रेशन जो है आप वैसे भी वर्ड और फ्रेजेस के बीच में यूज कर सकते हैं या रूट वर्ड स्टार लगा के भी यूज कर सकते हैं। आपने ये सीख लिया। अब अगली चीज सीखते हैं। पिछली बार हमने सिर्फ टेम्परेरी वर्ड यूज किया था, अब इस बार टेम्परेरी के अलावा और कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर कैजुअल एम्प्लॉयज वो भी डाल सकते हैं। तो उसको कैसे टाइप करेंगे, उसके लिए हम और लिखेंगे बीच में, और कैपिटल में OR, उसके बाद कैजुअल लिखेंगे, फिर एक और लगाइए और उसके बाद लिखेंगे एडहॉक एम्प्लॉय। देखिए दिखा भी रहा है वो एडहॉक एम्प्लॉय के लिए। अच्छा, एडहॉक आपने डबल इन्वर्टेड कोट्स में इसलिए डाला है क्योंकि वो दो वर्ड है और एक जैसे मिले इसलिए। तो देखिए आपको अगर सिनोनिम ढूंढने हैं तो और लगा के आप ऐसे ढूंढ सकते हैं। पिछली बार हमें डाइजेस्ट नोट मिल रहे थे 7 और जजमेंट मिल रहे थे 126 जब हमने कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट को एज ए फ्रेज लिया था। इस बार हमें डाइजेस्ट नोट मिल रहे हैं 28 और जजमेंट मिल रहे हैं 676। इसका फायदा ये हो रहा है कि कुछ भी जजेस ने लिखा हो, चाहे कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट लिखा हो चाहे अपॉइंटमेंट कैंसिल्ड, एज यू कैन सी इन द फर्स्ट नोट विच इज अपीयरिंग हियर, किसी भी तरह से अगर जजेस ने या चीफ एडिटर किसी भी रिस्पेक्टिव जर्नल ने कैसे भी किसी भी लैंग्वेज में कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट की कॉन्सेप्ट को लिखा हो और वो कॉन्सेप्ट अगर एडहॉक एम्प्लॉयज के लिए, कैजुअल एम्प्लॉयज के लिए और टेम्परेरी एम्प्लॉयज के लिए डिस्कस हो रहा था, तो वो आपके सामने आपकी नजरों में पेश हो ही जाएगा। इस शर्त से नहीं बचेगा क्योंकि हम लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं रहे, हम फ्रेज स्पेसिफिक नहीं रहे। हमने लिबर्टी ले ली कि हम कैंसिल वर्ड अपॉइंट वर्ड के पास जहां आ रहा है या उसके डेरिवेटिव्स आ रहे हैं हमें सारे दिखा दो।
और उसके बीच में भी हमने ये अपना आगे एक स्टेप आगे कर लिया कि हम सिर्फ टेम्परेरी वर्ड क्यों ढूंढे, हमने टेम्परेरी के साथ एडहॉक भी ढूंढा और कैजुअल भी ढूंढा। वैसे ही अगर आप जो है एम्प्लॉयज के रिमूवल या डिसमिसल की बात कर रहे हैं या टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप ऐसे टाइप कर सकते हैं, टर्मिनेट और डिसमिसल और रिमूवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उसके और ऑप्शंस आपके दिमाग में आ रहे हैं और करके लिख सकते हैं। तो हमने ये सब चीजें सीख ली। एक अभी और बाकी रह गया है ऑपरेटर, जिसका वो है नॉट। तो क्या हम जा सकते हैं उसके ऊपर? हाँ, लिखिए कंपनसेशन। मुझे कंपनसेशन केसेस तो देखने हैं, लेकिन कंपनसेशन केसेस मैं नहीं देखना चाहता हूँ मोटर व्हीकल के। तो कंपनसेशन नॉट मोटर लिखेंगे तो मोटर व्हीकल वाले सारे खत्म हो जाएंगे। आप एमवी एक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एमवी एक्ट हर जगह पे नहीं लिखा होता, कई जगह मोटर व्हीकल ही लिखा होता है। तो मोटर व्हीकल, तो ये बेहतर है कि आप मोटर लिख दें। कहीं ना कहीं मोटर या कार जो है लिखी हुई जरूर आ जाएगी केस के अंदर, या जो आपका जो व्हीकल है जिससे जो है एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि हम वो नहीं चाह रहे हैं। तो ये अब आपको बाकी तरह की कंपनसेशन दिखा रहा है, लेकिन मोटर व्हीकल के बिल्कुल नहीं दिखाएगा। वापस चलते हैं सर्च पे। तो क्या हम एक ही वर्ड को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि ज्यादा को भी कर सकते हैं? हम ज्यादा को भी इकट्ठे एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब इसी में वापस जाके हम इस बार सिर्फ कंपनसेशन नॉट मोटर ना लेकर हम उसको जो है ऐसा करते हैं कि उसमें और भी चीजें ऐड करते हैं। आप ऐसा कीजिए, एक ब्रैकेट शुरू कीजिए नॉट के बाद, और देखिए मोटर और लैंड लिख दीजिए। हमें लैंड भी नहीं चाहिए, ये चल और जाएगा। हमें हाँ ये वाला ले लीजिए। मतलब बेसिकली अब हम 3 ऑप्शन ले रहे हैं कि तीनों नहीं चाहिए हमें। लिखिए, सेलेक्ट कर लीजिए कि देखिए इन्होंने अब लिखा कंपनसेशन बट नॉट रिलेटेड टू मोटर, नॉट रिलेटेड टू मेडिकल कंपनसेशन, नॉट रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन कंपनसेशन। सो तीनों चीजें हट गई। अब बाकी तरह के जो कंपनसेशन है वो सारे दिखाओ। स्टार्ट कीजिए। आपको ये कोई भी सर्च का रिजल्ट जो है उसमें मोटर वर्ड नहीं होगा। ओके, माय फॉल्ट। ब्रैकेट लगना रह गया। ब्रैकेट तो आधा ही रह गया उसमें। मैं राइट इट डाउन। मोटर और लैंड और मेडिकल। हमारे पास तो कम से कम 1000-1500 ऐसे अच्छे एग्जाम्पल हैं, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आपकी अपनी टाइम की जो कन्वीनियंस है वो आपको हमें बतानी है कि आप कब तक जो है वो हमसे और ये सेशन देखना चाहेंगे, प्रिया जी। और Sir, बाकी जो भी actually, you have to proceed to registrar office at 5. So, I think for today we can end this session, and we all really thank you from heart for devoting us so much time, and really we enjoyed the presentation. I have used this SSC online software when I was in Indian Law Institute, but ओ ILI में। yes, sir, I am from Ireland. अरे कमाल है, तो आपने आपने तो जो है रिसर्च जो है भाग सिंह साहब से सीखी होगी। मेरे टाइम में शायद नहीं थे, हम्म, लेकिन there we have exhaustively used this online library, including many journals. जी तो आज लेकिन इसके बहुत सारे नए डायमेंशंस भी पता चले, तो अच्छा लगा देखकर। लेकिन जी वो जी है ना, कोई काम जो पेंडिंग होता है सर पे, तो वो फिर 1 घंटे से बजे स्टार्ट हो जाती है। राइट नाउ दैट इज जी जी हैपनिंग विद मी वाह, मी एंड माय कलीग प्रोसीड टू रजिस्ट्रार ऑफिस। जी आप लोग जब स्टूडेंट का सेशन लेंगे तब हम लोग इसको इसी में कंटिन्यू करेंगे। एंड वन जी रिक्वेस्ट, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ आप प्लीज ट्राई कि उसको हिंदी में रखिएगा। और देखिए, रिगार्डिंग द ऑथेंटिकेशन ऑफ ये दिस, जो हमारे जो ना एक और वक्ता गण जो है इधर साथ में बैठे हैं चुपचाप, अरुण जी, अपना अरुण अपना पांडे जो जी। अरुण पांडे जी, अपना जो है कृपया माइक को अनम्यूट करें और अपनी स्वर लिपि से कुछ जो है मधुर से स्वर निकालिए। Now we'll take care of this हिंदी में बात करने आप वाली बिल्कुल बात। बिल्कुल चिंता ना करें, मैं भी लखनऊ से ही हूँ। More on your Hindi now. जी जी, नहीं नहीं, हम लोग कोशिश Actually, करेंगे कि बहुत not open with me, but while working in Nagpur University ना, अब वो है ना कि जब सर पे पढ़ती है तो सीखना पड़ता है। I have जी read, started reading through the gloss and legal glossary, ये पूरा मेरा हर टाइम जी खुला रहता है। जी जी जी, But नहीं I मुझे भी, always encourage my students to get adapted to English, because that is only the practical way.
for research? आगे जाके देखिए लाइफ में ना चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा, मैं कभी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं सीधे इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पहुंचा तो इंग्लिश मीडियम में इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है हुआ। जी जी आई थिंक वो लाइफ जो है वो आपको बहुत लेसन्स देती है, और आप लोग धीरे धीरे जो है वो इस चीज को आई एम श्योर कि स्टूडेंट में इनकलकेट करेंगे इस चीज के लिए कि ये लैंग्वेज स्किल विल प्ले ए वेरी पिवटल रोल। बहुत ही बड़ा आई थिंक बहुत ही मजबूत आधार बन जाता है अगर आपकी लैंग्वेज का जो है कंट्रोल है। लैंग्वेज चाहे आप हिंदी बोल रहे हैं, चाहे इंग्लिश बोल रहे हैं, चाहे जो भी लैंग्वेज आपकी प्रिफर्ड है, तो आप अपने कम से कम विचारों को अच्छे से बता पा रहे हैं, उसी में सबका जो है मैजिक हो जाता है। जी तो definitely. आप जैसे आप रिकमेंड कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हिंदी का ही प्रयोग करेंगे अपने अगले प्रेजेंटेशन में। लेकिन जल्दी से कर लीजिए क्योंकि ये हमारा जो जो हमने ट्रायल चला हमने रखा है आज वो डायरेक्टर सर से आज डिस्कस करके कि कैसे जी हम लोगों को रखना है, जी क्योंकि हम लोगों के अभी 3 सेमेस्टर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो जी हम लोग सेमेस्टर वाइज रखेंगे या सब स्टूडेंट्स को एक साथ अगर हम लोग ला सके एक टाइम पर, तो जी दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट। एक्चुअली सर ये सब चीजें ना होती हैं कि सेमिनार हॉल हो और प्रेजेंटेशन चले तो वो एक अलग माहौल होता है, लेकिन अब है दैट इज अब आप चढ़ाइए मत। ये देखिए, ये आप चढ़ाने वाले हो। रिकॉर्डिंग बंद कर दे पहले चेतन भाई। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। वो मैं कह रहा हूँ प्रिया जी, आप चढ़ाइए मत। हम लोग भी जो है वो इन पर्सन ही करना चाहते हैं हमेशा, अलग अलग जगह जाके यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। प्रांगण बोला मैंने, यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, उसके जो बड़े बड़े जो है वो प्रेक्षागृह है उसके अंदर, उसको सेमिनार हॉल को बोलते हैं। प्रेक्षागृह। चेतन में का मुंह खुला हुआ, देखिए उधर। चेतन कह रहे कैसी कैसे कैसे वर्ड बोल रहे हैं ये। तो हम लोग खुद भी चाह रहे हैं कि आई थिंक साक्षात्कार हो लोगों से, और आप लोगों के और आपके जो भी हमारे वहाँ पे विद्यार्थी हैं उनके साथ हम लोग जो है 1 to 1 अपना एक से एक करके जो है वो उनसे बातचीत कर सकें। उनकी जो किसी तरह की कोई वो क्वेरीज हैं, किसी तरह की जो उनके क्वेश्चंस हैं, उनको हम जो है उनका आंसर कर सकें। तो जितनी जल्दी आप ये करेंगे उतना ही अच्छे से ट्रायल का जो है वो हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। सर एक ऐसा क्योंकि टाइम स्लॉट निकालना कि जो एक्सक्लूसिवली इस काम के हो और कोई काम आपको पिंच ना करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आज ही सर से डिस्कस करके एंड विल फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है मैम, थैंक यू सो चेतन, हैव मच। यू डन लॉग? चेतन जी हाँ लॉग जी। किया कि not on papers, not on papers. हम लोग सभी जो हैं वो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैंने अपनी केमिकल टेक्नोलॉजी आप ही के यहाँ से की थी, और HBTI कानपुर में मैं 1985 में मैंने जो है वो किया था। और मेरे बहुत से आपके जो पाठक जी हैं, विनय पाठक जी, जो है मेरे से 4 साल जूनियर हैं, जो वाइस चांसलर साहब हैं। तो तो आई it is a great pleasure to be with everyone here in this forum, and I'm sure next session will be even more entertaining. बहुत मजा आएगा। और thank you so much for sparing your time. बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. देखिए मिलते हैं हम लोग। Thank you. Thank you.